you and then you will take over. All right. Great. Looking forward. Oh, sorry, एक minute. No, sir, I'll introduce the speaker speaker and the team of Shamail is CEO of the Transformation Professional Private Limited. He is internal audit assurance, risk and management consultant and practitioner with the experience of over 1.5 decades in the global advisory practice and financial institutions, including KPMG, HBL Bank, AZ, Zurich in UK, Middle East, and Pakistan. His experience includes setting up and managing the SMEs regional offices for global advisory practices, internal audit risk and compliance function, and global accountancy firm providing assurance and IERC consultancy services, undertaking internal audit investigation, anti-money laundering, know your customers related projects. He is advisor to manage charities and corporate social responsibilities initiatives. He is also the trustee of Bethel Sukoon Cancer Hospital and Hospice and Talent Inducement and Placement Society Tips. He has done graduation in accounting from University of Essex, UK, and qualified ACA from the Institute of Chartered Accountancy of England and Wales. He is certified internal control auditor and an internal audit practitioner. He is CEO of the Transformer Professional Private Limited. And our next guest speaker is uh, Syed Mohammed Haider. For the last decade in the UK, has worked for over 15 banking and financial institutions as a financial crime prevention, transformation consultant, trainer, and money laundering reporting officer. He has recently joined the Transformation Professional Private Limited as the head of compliance and financial crime prevention. He has a strong background in training and managing the remediation projects related to the anti-money laundering, compliance and the financial crime across a broad spectrum in financial services, including the assets management and private banking and trading. Sayyid Muhammad Well, Sahir is a subject matter expert in the following investigatory and financial crime prevention system and the control areas: governance, policies and procedures, transactions, monitoring, financial crime legislation and regulations, sanctions and monitoring compliances with the policies, procedures, criminal financial crime and forensic investigations, suspicious activities, transactions reporting, enhanced due to diligence and staff vetting, and Heather holds an advanced certificate in anti-money laundering ICA. He has worked for the following banks and financial institutions in the UK: Habib Bank, AG Zurich Bank, Hapolium, Self Trade, ANZ UK, BGC Partner, Qatar Islamic Bank, National Bank of Abu Dhabi, WH Ireland, Bank of Bermuda, Barclays Wealth and the Investment, Al Rayan Bank, Shell Trading, and Supply of ABC Bank. Now handing over to the Shamail for further deliberation. just a minute, Shumail. Wonderful introduction, Manzar. I just wanted to interject here that Sir Air Marshal Shahid is waiting to get in the program. He's having difficulty to connect. So can somebody help him, please? सर So, कनेक्ट हो गए हैं अब Acha, he's here. All right. Yes. Okay, Shumail, go ahead, please. Thank you very much. I'm not sure. Is Jumail there? Gee, I'm here. Can you guys hear me? Yeah, we can hear you now. Perfect. अच्छा, let me just एक second. मैं दो जगह से login किया हुआ था, तो let me just close one. Perfect. जी. I hope everyone can hear me now. Yeah. It's okay. Perfect. Sir, Ekto, thank you very much for giving us this honor to be presenting at this auspicious
organization, a group of people who are leaders of their own profession and the industry. And what I hear, and I would like to thank Mazhar Saab for giving us the opportunity to present at this event. We look forward to I look forward to introducing my colleague Heather, who is again an esteemed professional from the financial crime and prevention industry. And myself, I am a risk consulting professional. I've been working both in UK 18 years. Currently, as Mazhar Saab introduced, I am the Chief Executive for Transformation Professionals Private Limited, which is a consulting firm. We're focusing mainly on risk consulting from there. And I've got the additional responsibility recently of being the Managing Director for TH Associates Private Limited, which is a share registrar company. It's a pioneer, one of the pioneer share registrar companies. Over 32 years old. So I've got responsibility for that as well. With our focus of what we do, just to give you a quick brief of what Transformation Professionals does, and then we'll take you to the presentation. Our focus is on internal audit, forensics, compliance, AML, KYC, and areas of similar interest. And we are looking to work with people to transform their businesses, to work with them, be able to give them a understanding of the relevant AML, KYC, and compliance scenarios. And discussion with him earlier requested that they wanted a similar work to be conducted and a presentation be performed. So hence, obviously, we are here. Apologies for the disturbance in the back end. I'm just moved into Lahore and working with as a guest in someone's place. We're just trying to settle in. But I would like to introduce Heather. I think Mazhar Saab has introduced him already as, so I don't want to be a hindrance between the main presentation and myself. So I'll let Heather take over and start his presentation. Thank you, Shumail. Can everyone hear me and hopefully see me? Yes. Thank you so much, everyone, for joining this. Can everyone see my presentation? No. Not yet. Let me just quickly. Oh, I think Shumail, I think you have blocked me now. I'm unable to like. You can share. You start sharing. I have. You should be able to share now. 1 second. Sorry, it's hung for me now. No worries, take your time. Apologies. 1 second. Share screen. You should see it now. Can you guys see it? Yes. Brilliant. It's coming through, yeah. Perfect. Thank you so much, Shumail, and thank you all of you for taking our time on a Saturday at 9 o'clock. Unheard of from where I have come from. Saturday को कोई काम नहीं करता और financial crime prevention के बारे में तो कोई बात नहीं करना चाहता. And the other interesting part is that what I find it very exciting in Pakistan, this is my third training session that I'm doing, is that I get to speak in Urdu as well, which is brilliant. I am bilingual, and if there's anyone who wants me to speak in English or Musalsal Urdu, I can do that. I can talk to you. And this is not a regular session that I'm doing generally, because in the past 4 to 5 years as a trainer, I was training senior management, or I was training or working with MLROs and money laundering reporting officers and deputy money laundering reporting officers or compliance professionals. So I would directly jump on the nitty-gritties rather than going back and explaining the big fish.
Thank you so much for joining. I wanted to know सब लोगों का क्या background, but it's absolutely fine. I would first explain financial crime prevention. We'll talk about money laundering, and we'll talk about terrorism financing and what the impact is right now, and what the bankers and financial institutions are actually feeling it now. मगर ये कि मैं पहले फाइनेंशियल क्राइम के बारे में आपको बताऊं, फाइनेंशियल क्राइम एक ऑक्टोपस की तरह है, और मैं इसके बहुत सारे टेंटिकल्स हैं, इसमें सारे नहीं है, लेकिन ये वो मेजर चीजें हैं जो कि कंप्लायंस डिपार्टमेंट्स जो हैं बैंक्स में और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में करते हैं और प्रिवेंट करने की कोशिश करते हैं. सो दिस मनी लॉन्ड्रिंग, दिस ब्राइबरी एंड करप्शन, दिस मार्केट अब्यूज, दिस साइबर सिक्योरिटी, दिस फ्रॉड, दिस टेररिज्म फाइनेंसिंग, ये सारी चीजें जो हैं ये सब जब मिल जाती हैं तो ये एक खतरनाक सा ऑक्टोपस है, व्हिच इज फाइनेंशियल क्राइम. और फाइनेंशियल क्राइम किस तरह हमारे लिए नुकसानदेह है और हमारी इकोनॉमी को किस तरह नुकसान पहुंचाता है, बहुत सारी इकोनॉमीज को फायदा भी पहुंचाता है, मगर और वो किस तरह पहुंचाता है और उसका क्या रेपुटेशनल रिस्क है और क्या होता है, इसके बारे में आज हम बात करेंगे. एंड व्हाट स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान हैज डन इन द पास्ट से 3 to 4 years और इवन 5 years जब से हमारे ऊपर ये FATF की एक छुरी लटक रही है. I would first speak. This is basically what I'm going to talk about is latest development in Pakistan in terms of the regulatory updates. There are loads of regulatory updates, but some of them are really, really nitty gritty in the sense detailed, which directly doesn't affect the customer or so हाँ, अगर compliance में तो trade based finance की बहुत सारी चीजें हैं, उसमें suspicious activity reporting के बारे में है, वो बातें जो है वो हमारे जो इंडस्ट्री के लोग हैं बहुत ज्यादा डीप उनसे की जा सकती हैं. बट आई पिक्ड अप दोज इंपॉर्टेंट रेगुलेशंस जो कि आप लोगों को भी अफेक्ट करेंगी. आपके बच्चे अगर स्कूल या कॉलेज यूनिवर्सिटी में जाते हैं उनको भी अफेक्ट कर रही होंगी, आपके इर्द गिर्द अफेक्ट कर रही होंगी. आप ये पूरा इम्पैक्ट देखेंगे. आप गाड़ी खरीदने जाएंगे तो आप पे होगा, आप खरीदने जाएंगे तो आपके ऊपर एक बड़ा इम्पैक्ट है. तो बहरहाल आई एम टॉकिंग अबाउट दोज डेवलपमेंट्स. देन जो हमें FATF ने डायरेक्शन दी है उसमें रिस्क बेस्ड अप्रोच है. हमें जो उसको काउंटर करने के लिए उन रेगुलेशंस को किस तरह अप्लाई करेंगे और इवेंचुअली आप तक वो चीज कहाँ कैसे पहुंचेगी. एंड दीज आर द टॉपिक्स एज आई मूव फॉरवर्ड, तो आप लोगों को पता लगता रहेगा. प्लीज फील फ्री टू, अगर 40-50 लोग होते हैं किसी सेशन में और 50 से ऊपर होते हैं तो फिर कोशिश करता हूँ कि क्वेश्चंस को एक जगह साइड पे किसी से लिखवाता रहूं. बट बिकॉज इट्स नॉट अ लार्ज सेशन, if someone wants to speak they can always raise their hand. मैं बहुत उसमें जो है ना वो महव होके प्रेजेंटेशन देता हूँ. सो अगर मैं मिस कर जाऊं तो प्लीज मुझे टोक सकते हैं आप, और शुमाइल को मैसेज कर सकते हैं. शुमाइल can stop me and then and I'll try and do. So we start with Heather, excuse me, this is Salim Rahman. At the outset, I have a small question. Sure. Can you? A lot of us are confused right now about the connection between terror financing and money laundering. Yes, I'm coming to that, sir. I will definitely discuss it. If you could kindly sort of move your presentation to clarify to us the link between the two, because we're all aware of the FATF and so on and so forth, and Sure. How much are these things connected? This tentacle that you just showed us, the figure. That's exactly what I'm trying to do, sir. So सबसे Okay. पहली चीज तो ये है कि ये मनी लॉन्ड्रिंग, टेररिज्म फाइनेंसिंग, फ्रॉड, साइबर सिक्योरिटी हो, मार्केट अब्यूज हो, ब्राइबरी एंड करप्शन हो, it is all linked to how much you know your client. Now, please try and understand that the client can be an individual, client can be a corporate entity, client can be a private limited company, it can be an LLC, it can be a listed or a regulated entity. Listed and regulated से मेरी मुराद है कि it can be a bank. बैंक भी किसी का client होता है. और ये सब जो है ये it's all about how much you know about the client. And the second thing is you have to follow the money trail. Now, if I'm sitting as a compliance officer at a bank, I am the basic uska structure ये है कि I need to find all the audit points, register everything important, and then follow the money trail कि ये पैसा कहाँ से आ रहा है और ये कहाँ जा रहा है.
I will definitely create, I'll tell you what the link between money laundering, terrorism financing is. मगर इसमें सबसे important मेरे ख्याल से ये समझने की जरूरत है कि मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिज्म फाइनेंसिंग ये दोनों अलग अलग कैसे हैं। जब आपको ये बात समझ में आ जाएगी कि दोनों अलग अलग कैसे हैं, तो आप ऑटोमेटिकली इसको समझ लेंगे, बिकॉज यू अंडरस्टैंड द बेसिक्स ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेररिज्म फाइनेंसिंग। मनी लॉन्ड्रिंग ये है कि आपने एक, जो उर्दू में बताऊं, कि आपने कोई गलत काम किया एंड द प्रोसीड्स ऑफ दैट गलत काम is being now added to the clean financial system. ये वो फाइनेंशियल सिस्टम है जिसमें मेरे, आपके और आपके इर्द गिर्द उन शुरफा के पैसे रखे हुए, और ये उस पूरी रिवर को गंदा करना चाहते हैं। गंदा तो नहीं होता क्योंकि रिवर बहुत बड़ा होता है, जब आप उसके अंदर गंदा पानी डालते हैं तो क्या होता है, आपका वो गंदा पानी भी ऑटोमेटिकली साफ हो जाता है। जैसे कि हमारे यहाँ के आप दरिया और समंदर का पानी, उसमें जो भी आप यू कैन डू वुज़ू विद इट, जस्ट बिकॉज द कॉन्सेप्ट इज कि अगर बहुत ज्यादा छोटा गंदा पानी बड़े गंदे पानी में चला जाए तो वो गंदा पानी जो है वो साफ हो जाता है। And that is what they're all trying to do. So what they try to do is that they do something wrong, which is illegal, and trying to add those proceeds into the money that is going into the clean economy. ये है money laundering. And then there is terrorism financing. Now, what is the clean and overcut difference between both of them? ये बात जो है, ये एक्चुअली अगर आप देखें तो इसकी प्रिवेंशन की जो पॉलिसीज प्रोसीजर्स बनाए जाते हैं, ये दोनों को प्रिवेंट एक ही तरीके से करते हैं। मगर टेररिज्म फाइनेंसिंग एक बहुत शेडी एरिया है। हाउ? क्योंकि सबसे बड़ा डिफरेंस मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिज्म फाइनेंसिंग में है कि मनी लॉन्ड्रिंग में आपको गलत काम करके एक अपना पैसा उसमें सबमिट, मगर टेररिज्म फाइनेंसिंग का चक्कर यह है कि आप एक बिल्कुल लीगल काम कर रहे हो उसमें। आप टैक्सी चला रहे हैं, आप एक छोटा बिजनेस कर रहे हैं, आप सारी चीजें कर रहे हैं, मगर आप वो लीगल पैसा एक गलत काम में लगा रहे हैं, जो कि एक बहुत, उसको आइडेंटिफाई करना जो है फॉर मी इज वेरी डिफरेंट। और एज ए कंप्लायंस पर्सन अगर मैं ऑफिस में बैठा हुआ हूं और मेरे पास मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा आ रहा है, तो उसके फ्लैग्स जो हैं वो बड़े ऑब्वियस होते हैं। भाई एक आदमी है वो एकदम से कैश लेके आना शुरू हो गया, एक साहब हैं जिनके पहले अकाउंट में 50,000 आते थे, अब 5 लाख आना शुरू हो गए और उनके पास कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। एक साहब हैं जिनको बार बार एक ही अकाउंट से ट्रांसफर हो रहे हैं और अलग अलग तरीके से हो रहे हैं और वो साहब की रेपुटेशन सही नहीं है। देयर आर 100 ways to really इफ अगर कोई पकड़ना चाहता, टेररिज्म फाइनेंस का चक्कर ये है कि एक साहब है वो आ रहे हैं आपके पास, वो बहुत शरीफ आदमी है, आपको पता है कि वो बहुत अच्छे आदमी है, अब वो अपने घर के अंदर बैठ के किसको यूट्यूब पे सुन रहे हैं और वो उनका दिमाग कौन इंटरनेट पे खराब कर रहा है, दिस इज यू कांट रियली नो। सो टेररिज्म फाइनेंसिंग और मनी लॉन्ड्रिंग का सबसे पहला प्रॉब्लम तो ये है कि ये दोनों इस तरह डिफरेंट है कि टेररिज्म फाइनेंसिंग इज एक्चुअली रियली डिफिकल्ट to find on the first line of defense when it comes to banking and financial industry. Now please try to understand, इस सारी चीजों के gatekeepers जो हैं वो हैं तो बैंकर्स ही, वो हैं तो वही लोग जो कि इनिशियल सबसे पहले गेट पे आपसे चेक कलेक्ट करते हैं, आपसे कैश कलेक्ट करते हैं और वो सारी चीज करते हैं। इसलिए जो मैं आपको टेंटिकल्स दिखा रहा हूँ, ये सारी चीजें जो है, चाहे वो मार्केट अब्यूज हो, जनरली मार्केट अब्यूज इज लिंक्ड टू समवन हु इज वर्किंग एट your bank or at your institution. Heather, excuse me, sorry for interrupting again. Would I be right to assume that it would be stupid to carry out money laundering to finance terror, because you would be caught red-handed straight away? So we are trying to do that. So because there is money laundering happening to fund terrorism and it is 100% true, but unfortunately वो जगह जहां पर अब ये FATF के रूल्स अप्लाई हो रहे हैं, से फॉर इंस्टेंस मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दूं कि मैं अभी लंदन में एक सेमिनार अटेंड कर रहा था और मेरे जैसे बहुत सारे वहां पे लोग बैठे हुए थे एंड वी स्पोक अबाउट द बेनामी अकाउंट्स। उन्होंने एक स्लाइड पे लगाया बेनामी अकाउंट, जब भी पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा केस हुआ था, आई डोंट वांट टू वैसे सियासी गुफ्तगू है उसमें, उसके अंदर जब उन्होंने पाकिस्तान का नाम लिया और वो उन्होंने बात की, तो मैं तो इतना हैरान नहीं हो रहा था, लेकिन मेरे इर्द गिर्द जो लोग बैठे थे वो बहुत हैरान हो रहे थे। वो बहुत हैरान हो रहे थे, वो इसलिए हैरान हो रहे थे, वो जो स्विस बैंकर्स कंप्लायंस ऑफिसर बैठा था, तो वो जो न्यूजीलैंड का एक कंप्लायंस ऑफिसर बैठा हुआ था, वो जो वहां पे यूएस का बैठा हुआ था, दे वर शॉक्ड कि ये कैसे हो सकता है। वो इस वजह से था बिकॉज they have developed these systems and controls at least 10 years ago and now they're applying it to the T. इस वजह से मनी लॉन्ड्रिंग करके टेररिज्म फाइनेंस करना उनके नजदीक एक मुश्किल काम है।
Impossible. और हम भी उसी तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं कि हम बैंकिंग को वहां तक, बैंकिंग कल्चर को देखिए, ये टिक बॉक्स एक्सरसाइज नहीं है। हमारे अभी मैं अपनी अकाउंट खुलवाने गया था, अभी एक लोकल बैंक में अपना अकाउंट खुलवाने गया था, तो मैं वहां पे 5 चीजें पकड़ रहा था, क्योंकि मैं यही काम करता हूँ। तो मैं वो चीज देखा, अच्छा इसने मुझसे ये नहीं पूछा, इसने अच्छा ये क्यों किया, अच्छा ये इसको ऐसे नहीं, ऐसे करना था, ये अकाउंट फॉर्म खुद क्यों फिल कर रही है, मैं क्यों नहीं कर सकता ये फॉर्म। लाइक यू नो, हमारे यहाँ कल्चर बड़ा अजीब है। ये इट इज अनहर्ड ऑफ कि आप लंदन में किसी अकाउंट ओपनिंग ऑफिसर के पास जाएं, वो आपका अकाउंट का फॉर्म खुद फिल करके आपको दे रहा हो। दिस इज कंप्लीटली, इट इज जस्ट रॉन्ग। सो मैं आपको बता रहा हूं, दिस इज ऑल अबाउट कल्चर। सो हम, यस यू आर राइट, कि अब अगर हम वहां वो सारे जो अभी इतनी मेहनत कर रहा है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, ट्रस्ट मी बहुत मेहनत कर रहा है। The regulations that I've seen now, it is top notch. It is top notch. जो दुनिया में हो रहा है उसके हिसाब से you can compare it to any country. बहुत सारे मुल्कों के ऊपर अताब आया है जनाब। It's not just पाकिस्तान, अभी दुबई के साथ बहुत बुरी हुई है, UAE के साथ बहुत बुरी हुई है। While I was in London, they were considered as tax havens. And when you consider as tax haven, which means that if a banker wants to do business with you, he will actually go through at least 5 days extra before he gets his money. जो उसका बोनस मिलेगा या उसको जो उसको पार्टी करनी होगी, वो उसको कम से कम 5 दिन एक्स्ट्रा लगा देने होंगे अगर वो दुबई का कोई क्लाइंट होगा। अगर वो पाकिस्तान का कोई क्लाइंट होगा तो वो 15 दिन लगा देगा, क्योंकि उसकी ड्यू डिलिजेंस इतनी होगी, इतनी ड्यू डिलिजेंस होगी, जस्ट बिकॉज पाकिस्तान इज अ हाई रिस्क कंट्री, इट्स नॉट सैंक्शन अल्हम्दुलिल्लाह, बट इट हैज unfortunately, because of the news, a banker sitting in London will not put your hand on the business. Let's move on. अभी बहुत सारी बातें मुझे करनी है सर, बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें, आपके बहुत सारे सवालों की इस प्रेजेंटेशन के दौरान आंसर्स होते जाएंगे। So these are what I'm talking about. Know your customer and know your client is the most important aspect. चाहे आप bribery and corruption पे चले जाएं, चाहे आप मनी लॉन्ड्रिंग पे चले जाएं, चाहे आप फ्रॉड की बात करें, ये सब चीजों की जो बेसिस है is to know who you're dealing with. Say for instance फ्रॉड है, फ्रॉड के अंदर इंटरनल फ्रॉड भी होता है, एक्सटर्नल फ्रॉड भी होता है। इंटरनल फ्रॉड कौन करता है? आपका अपना एम्प्लॉई। इसीलिए आपको वेटिंग करनी पड़ती है। आप लोग सब, a lot of you are associated with armed forces, आपने पता है कितनी खतरनाक वेटिंग होती है before you get to that point, कि आपकी उसूल क्या है, आपके ज़वाबित क्या है, आपके दिमाग में क्या है, आप कौन है, are you physically fit? So this is all vetting that you're doing. Same is the situation with when you're employing a person who's sitting there at a bank. So हमारे यहाँ, मैं आपको लंदन की एग्जांपल देता हूँ कि हमारे यहाँ जब बैंक में कोई आदमी आता है तो सबसे पहले तो उसका क्रेडिट चेक होता है। अगर वो वल्नरेबल है, से फॉर इंस्टेंस उसके पास बहुत सारे लोन्स हैं, उसने बहुत दिन से अपना क्रेडिट, उसकी हिस्ट्री इज नॉट गुड, वो पहले डिफॉल्ट कर चुका है, उसने पहले अपने लोन डिफॉल्ट किए हैं, या उसने क्रेडिट कार्ड के पैसे, तो उसको वो नौकरी नहीं मिलेगी, चाहे वो कितना ही एजुकेटेड हो, कितना ही वो कामयाब हो, उसको कितना ही साल का एक्सपीरियंस। उसका रीजन ये है कि एक वल्नरेबल आदमी को वहां नहीं बिठाया जा सकता। So what they're trying to do is that they are trying to know you really well before you sit there. इसी तरह फ्रॉड में, ब्राइबरी, करप्शन में, हर चीज में you need to know your client. और टेररिज्म फाइनेंसिंग का भी यही बेसिक उसूल है, और एंटी मनी लॉन्ड्रिंग का भी यही बेसिक उसूल है कि अगर आप किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट में बैठे हुए हैं और आपकी जिम्मेदारी है कि यू आर एक्सेप्टिंग अ क्लाइंट and the file comes to the first line of defense. अब मैं आपको बिल्कुल रियल सिनेरियो बताता हूँ। बैंक के अंदर एक साहब आते हैं, वो कहते हैं जनाब मुझे अकाउंट खोलना है। अब वो he's coming to the first line of defense. Now the first line of defense needs to have enough tools in his hand, enough understanding in his head कि वो जो सामने अगर आदमी है और वो क्रिमिनल है, तो he has to be extra sophisticated to actually pass through the first line of defense. वो first line of defense को उसने dodge कर भी दिया, then he comes to the compliance officer or the MLRO or the money laundering reporting officer, whatever. ये लोग, these are the second people. I will come to that, sir. That's a good question. I will come कि ये किस तरह होता है UAE, स्वीडन और ये सारी चीजें। मैं खुल के आप लोगों से बात करूंगा। हैदर, मेरा एक क्वेश्चन है क्विकली। मैं बिल्कुल खुल के बात करूंगा इसके बारे में। I received सलमान साहब का क्वेश्चन है, वो मुझे मिल गया है। I will come to that, sir. जी हैदर, एक और मेरा क्वेश्चन ये है कि आप क्लाइंट को जज कर रहे हैं, लेकिन सम टाइम पीपल क्रिएट देयर ओन बैंक्स फॉर डूइंग सच फ्रॉड्स। Absolutely, sir. वो that is I will come to that. Now it is Heather, can you just one sec, sir, can I request, I think because the presentation will be an hour itself,
एक है, आई नो हैदर ने कहा था कि वो क्वेश्चंस कर ले, बट आई वुड रिक्वेस्ट कि अगर हम आप जो रेलेवेंट स्लाइड्स हैं वो नंबर्ड है, इफ इट्स नॉट अर्जेंट, इफ वी कैन डू द क्वेश्चंस राइट द एंड, तो फ्लो नहीं टूटेगा, एंड आई कीप राइटिंग जो रेलेवेंट क्वेश्चंस से चीजें भी होंगे। एब्सोल्युटली। मैं अच्छा कहीं मैं ले बीच में ले, रुकता भी हूं तो आई कैन स्टॉप इन द मिडिल, अभी मैं जैसी 2-3 स्लाइड्स कर लूंगा तो आई विल स्टॉप इन द मिडिल एंड आई टेक क्वेश्चंस, इज दैट ऑलराइट? Azhar, I think this is fine. I think this is fine. We will wait for you to take a break so that we ask a question. Go ahead, please. Let's go through the slides in a flow as you have prepared. Go ahead. So now, सर आई सजेस्ट द पार्टिसिपेंट्स के जब जिस स्लाइड पे क्वेश्चन हो वो चैट के अंदर उसमें सर सलमान की तरह डाल दें, एंड शमाइल यू कीप नोटिंग एंड देन लेटर यू कैन गिव द मैं भी रिस्पांस। क्विकली नजर मार लेता हूं। सलमान को क्वेश्चन मुझे मिल गया है। सलमान साहब, I'll come back to you अभी, give me 2 seconds, I know when to come to you. अब आ गया अगर आप चाहें जी हाँ, तो आप उस पे टाइप भी कर सकते हैं सवाल, सर मैं देख लूंगा जी। So it's important that we know our client. When we talk about knowing our client, we're also talking about following the money trail. Now, when we talk about following the money trail, it is really important to understand who the ultimate beneficial owner of the relationship is. We need to understand that relationship अलग है, transaction अलग है. रिलेशनशिप जब आप एस्टैब्लिश कर रहे होते हैं तो आपके पास एक ट्रस्ट आया, से फॉर इंस्टेंस अकाउंट खुलवाने। अब ट्रस्ट खुद तो चल के आता नहीं है, ट्रस्ट के साथ भी कोई 2 लोग लगे हुए होते हैं जो आते हैं इंसान, वो आके कहते हैं जी हम ट्रस्ट हैं और हमें एक अकाउंट खुलवाना है आपके पास। तो अब आपके पास रिटन पॉलिसी प्रोसीजर होना चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए और आपके पॉलिसी प्रोसीजर इस डिटेल्ड में हो कि जब आप उससे अपना अकाउंट ओपन करवा रहे हो तो आपको ये पता हो कि ट्रस्ट का एक्चुअल बेनिफिशियरी कौन है, ट्रस्ट सेटल किसने किया है, किस आदमी ने इस ट्रस्ट में या किस कंपनी ने या किस ऑर्गेनाइजेशन में ये पैसे इसमें डाले और वो पैसा उसके पास कहां से। आई एम जस्ट टेलिंग यू द बेसिक्स ऑफ नोइंग योर क्लाइंट। नोइंग योर क्लाइंट इज नाउ अ वर्ल्ड, इट्स हैज एंडेड। एक जमाना था, मेरे वालिद साहब मुझे बताते हैं कि वो दुबई में भी होता था कि वो गए हाथ में सूटकेस लेके, मेरे अब्बा अपने दोस्त को लेके, और उन्होंने वहां पे रखा और उन्होंने कहा कि ये XYZ पाकिस्तानी को साफ थे, उनसे कहा कि भाई ये मेरे दोस्त हैं और ये अकाउंट खुलवाना चाहते हैं। उन्होंने कहा हैदर साहब आपके दोस्त हैं तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, कोई मसला ही नहीं है, पासपोर्ट वासपोर्ट बाद में ले आइएगा। उन्होंने वो पूरा कैश पकड़ा और अकाउंट खुल गया एंड हम एवरीथिंग वाज हंकी डोरी। नाउ दिस वाज अ गुड टाइम। अगर आप पाकिस्तान को देख लें तो पाकिस्तान में जब पहले ये होता था कि बंदा जिंदा होना चाहिए उसका अकाउंट खुल जाएगा, फिर ये हुआ कि नहीं बंदा जिंदा भी हो उसका शनाख्ती कार्ड भी हो, ठीक है, फिर ये हुआ कि नहीं बंदा जिंदा भी हो शनाख्ती कार्ड भी हो और वो बैंक उसको आना भी है अकाउंट खुलवाने के लिए, ठीक है। नाउ वीव कम टू अ सिचुएशन कि ये सारी चीजें भी होनी है, अब उसके बायोमेट्रिक्स भी होते हैं। बायोमेट्रिक्स के अलावा अगर वो बिल जमा करवाने जा रहा है तो भी बायोमेट्रिक्स हो रहे हैं। अगर वो एनी ट्रांजैक्शन लार्जर देन अ सर्टेन अमाउंट तो भी बायोमेट्रिक्स हो रहे हैं। आप किसी के अकाउंट में भी पैसे जमा करवाने जाएंगे तो भी वो आपसे पूछ रहा है आपका शनाख्ती कार्ड। ये सब कुछ क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ द वे बिकॉज ऑफ द वर्ल्ड। आप लोग कहते हैं कल्चर नहीं चेंज होता, भाई कल्चर चेंज हो रहा है। पहले ही होता था कि वो सेठ साहब जो थे यहाँ पे जूड़िया बाजार में कराची में बैठे होते थे, जब वो किसी को अपने बैंक के पास भेजते थे बैंकर उनसे कोई सवाल नहीं पूछता था। आज वही जूड़िया वाले बैंकर है ना, वो जाते हुए अपने नौकर को कहते हैं कि बेटा जाओ, जब जा रहे होगे ना तो ये इसकी रसीदें लेके जाओ, तो वो तुमसे पूछेगा कि भाई ये कहाँ से पैसा आया है, तो उनको दिखा देना कि भाई हमने बेचा है तो ये पैसा आया है। वी हैव कम टू दैट पॉइंट। और ये सारी मेहनत जो है वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की, इट इज मैं जब आया था तो आई वाज एस्टोनिश्ड ऑफ हाउ हार्ड वर्क, कितना हार्ड वर्क इन्होंने किया और रोजाना कर रहे हैं। SCCP और SBP बहुत मेहनत कर रहे हैं। मगर द प्रॉब्लम इज कि हम बहुत बड़े एलिफेंट हैं, हम बहुत बड़े जाइंट एलिफेंट हैं। मैं लंदन में था, 2000 के करीब उनकी इंटरनेशनल एंटिटीज है, हमारे सिर्फ 8 हैं, 9, 10, 12, 15 हाथ पे गिन सकते हैं आप। उनके यहाँ 2000 है इस एक छोटे से लंदन के अंदर, जो कि लिटरली सदर के बराबर है। और वो सारे बैंक जो है वो टू द टी फॉलो कर रहे हैं। अब तक वो 19 बिलियन पाउंड्स के बैंक्स को फाइन लगा चुके हैं माशाल्लाह। अभी बैंक ज़ूरिक वाज वन ऑफ द फर्स्ट वंस, दैट्स वेयर मी एंड शुमाइल मेट, हम यही काम कर रहे थे उस वक्त भी। हम उन्होंने इतने फाइन लगाए। अब ये सब कुछ हम बिल्कुल, मैं एग्जैक्टली जब मैं 2009-10 में जब मैं लंदन गया था और उसके बाद से मैंने ये सारा कुछ देखा था, ये सब कुछ वैसे ही हो रहा है। मगर लंदन की मार्केट अभी भी बहुत सारे रिमीडिएशन प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, अभी भी रोज फाइन होते हैं। मगर अब पहले जब मैं जिन बैंक्स में जाता था और अब मैं जिन बैंक्स में जाता हूं तो उसमें जमीन आसमान का फर्क है। इवन द मिडिल ईस्टर्न बैंक्स जिनकी फॉरेन पॉलिसी इतनी स्ट्रांग है, लाइक यू सेड, अभी जो आपका सवाल था, देखिए इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है फॉरेन पॉलिसी एंड हु यू आर एंड व्हाट योर रेपुटेशन इज,
ठीक है, ये इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है ये आपको ब्लैकमेलिंग तो गलत लफ्ज होगा कहना, मगर ये कि उनके पास आपकी कमजोरियां होती हैं और वो जब मर्जी मीडिया को कंट्रोल करके उसमें अखबार में खबर जाते हैं। मैं आपको बताता हूँ छोटी सी एग्जांपल, मैं हबीब बैंक एजी में काम करता था और हमें बड़ा फाइन लगा। हबीब बैंक एजी में सब ऐसा लग रहा था कि किसी का इंतकाल हो गया है, सब लोग बिल्कुल सर झुका के चल रहे थे, सबका दिल बहुत टूटा हुआ था। शुमाइल वाज लीडिंग अ रिमीडिएशन प्रोजेक्ट और मैं वहां पे एज अ केवाईसी एनालिस्ट बैठा था, 2010 में सिर्फ आईडी एड्रेस वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स चेक करता था। And then I moved on to do 15-17 different remediation projects. What I noticed was कि जब मैं हबीब छोड़ के एक फ्रेंच बैंक में गया जिसका नाम था सॉकजेन, जहाँ पे सेल्फ ट्रेड उनकी एक एंटिटी थी, उनके पास में गया तो मैं शॉक में चला गया। अगर हबीब बैंक एजी को उनके हालात पता होते कि पीछे उनकी क्लाइंट फाइल्स किस तरह रखी हैं, किस तरह उन्होंने ड्यू डिलिजेंस की है, तो यकीन करें हबीब बैंक जो था वो एफसीए के सामने, फाइनेंशियल कंडक्ट अथॉरिटी जो रेगुलेटर है यहाँ जैसे स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है, उसके सामने टेंट लगा लेते हो, बिकॉज सॉकजेन हैड नॉट डन एनीथिंग। उन्होंने इतने इतने बड़े भंडे मारे हुए थे कि मैं आपको बता नहीं सकता, मगर रेगुलेटर आया और उनको कहा आइंदा नहीं करना। अखबार में कोई खबर नहीं छपी, कुछ नहीं हुआ। मैं नेशनल बैंक ऑफ अबू धाबी में गया, नेशनल बैंक ऑफ अबू धाबी इतने भंडे मारे थे, इतने, उनके यहाँ कोई चीज नहीं थी किसी क्लाइंट के बारे में। हमने बहुत मेहनत की, 1.5 साल में वी ब्रॉट देम समवेयर, मगर इतने अरसे में उनको कई दफा उनको फाइन लग जाना चाहिए था। उन्होंने सिर्फ सेक्शन 166 लगाई, सेक्शन 166 कि आप कोई नया अकाउंट नहीं खोल सकते, वो भी बिल्कुल हल्की फुल्की सी लगाई थी। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड, जब कतर इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी ने आपका पूरा कनेरी वॉफ में इन्वेस्टमेंट की भी हो और ऑलमोस्ट खरीदा हुआ हो, और जितनी बड़ी बड़ी बैंक्स की बिल्डिंग्स हैं वो सब उनकी अपनी जाती प्रॉपर्टी हो, तो एफसीए भी सोचता है कि यार मैं कतरी बैंक को फाइन लगाऊं या नहीं लगाऊं। यही थ्योरी जो है वो आपकी अप्लाई होती है ऑन अ बिगर स्केल विद एफएटीएफ। आई होप यू अंडरस्टैंड। इससे ज्यादा मैं और तफसीली जवाब इसका दे नहीं सकता कि आपकी अपनी रेपुटेशन, आपका अपना माहौल, आपका पर्सनल रिलेशनशिप ऑफ अ कंट्री क्या है उसके साथ। देखें दुबई के साथ उन्होंने ये किया, दुबई के ऊपर अताब कब आया? व्हेन दे रियलाइज्ड कि दुबई से लाखों करोड़ों ईरानी पैसा इधर उधर हो रहा है। नाउ सबको पता था कि दुबई की क्या रिलेशनशिप है ईरान से, सबको पता ही हुई ईरान, मगर दुबई में ये भी हकीकत है कि दुबई इज अ कैश इंटेंसिव इकोनॉमी। दुबई में जितना बिजनेस हो रहा है, जो बैंक में पैसा पड़ा हुआ है, उसमें locals का तो है, मगर a big share of that is of non-nationals. Lots and lots of old Irani businessmen are sitting there. Let me tell you, Al Abbasis, Al Futtaim, and all these big bosses are all Irani. And they have lots and lots of connections, and there are loads of Iranis who are passing money through Dubai. Now, जब दुबई को डंडा होता था, दुबई ने कहा भाई हम अगर ये कर देंगे बंद तो हम खाए पिएंगे कैसे? And शायद आप लोग मुझसे बेहतर बताओ, बट वन ऑफ द रीजंस व्हाई दे आर बिकमिंग सो चम्मी एंड बेस्ट फ्रेंड्स विद इजराइल इज बिकॉज ईरान को उन्होंने कहा कि आप बंद करें ईरान को, आप कोई पैसा नहीं दे सकते। सो नाउ दे हैव टू फाइंड अ वे टू कॉम्पनसेट ऑन ऑल द मनी दैट दे वर मेकिंग थ्रू the money that was going, which is Iran is a sanctioned country, Sudan is a sanctioned country, Cuba is a sanctioned country. In मुल्कों में आप काम नहीं कर सकते, तो they are always finding ways to pass through their money through, and Dubai was a hub, and that is how they were making a lot of money. And now if that money is being cut because उन्होंने UAE ने, सिंगापुर ने, कतर ने, बहरीन ने, इन सब मुल्कों ने, यहां तक कि पाकिस्तान ने बेसिकली फाइनेंशियल कंडक्ट अथॉरिटी जो लंदन या यूके जिसको जो उनका हुआ है उसको कॉपी पेस्ट कर दिया है बेसिकली। जो क्योंकि लंदन इज अ मनी लॉन्ड्रिंग कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, यू ऑल नो दैट, आई एम नॉट हाइडिंग एनीथिंग, इट्स ट्रू। मगर ये कि मनी लॉन्ड्रिंग कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड होने के साथ साथ अब लंदन में सिचुएशन ये है कि अगर आप 5 मिलियन की चोरी करते हैं तो आप पकड़े जाएंगे, आप 50 मिलियन की चोरी करते हैं तो आप पकड़े जाएंगे, मगर अगर आप 500 मिलियन की चोरी करते हैं तो अब हमारे पास बैंकर्स भी हैं, हमारे पास अकाउंटेंट्स भी हैं, वहां पे आपके पास मोसेक फोंसेका भी है, आपके पास लॉयर्स भी हैं, एंड दे विल ऑल हेल्प यू टू पास द गेम। अब मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। हमारे बहुत सारे पॉलिटिशियंस हैं जिनकी एडवर्स मीडिया ऐसी है कि अगर मैं किसी बैंक में बैठा हूँ और मैं बैंक्स में लंदन में काम करके आया हूँ, तो बहुत सारे लोग जो हैं उनकी आप यू कैन नेवर इमेजिन देम उनके अकाउंट खुल सकता है। से फॉर इंस्टेंस अल्ताफ हुसैन, सच है या गलत है जो भी है, लंदन में है, लंदन में रहते हैं, उनके अकाउंट खुले हुए लंदन में, पैसे आ रहे हैं, पैसे जा रहे हैं। ऐसा हो नहीं सकता कि मेरे जैसा एक बंदा बैंक में बैठा हुआ हो और अल्ताफ हुसैन के पास पाकिस्तान से पैसे आ रहे हो और उसने चेक ना किया हो। उसने डेफिनेटली चेक किया होगा, वो जब गूगल पे अल्ताफ हुसैन लिखेगा सबको पता लग जाएगा अल्ताफ हुसैन कौन है। मगर सिचुएशन क्या है, इतनी रेपुटेशन की बात कर रहा हूँ, वो कौन है क्या है गैर सियासी गुफ्तगू है, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से ओवर हियर इज उनकी रेपुटेशन ऐसी है कि कोई भी इंसान अगर उनके बारे में गूगल में पढ़ेगा तो उसका बैंक अकाउंट नहीं खोल सकता।
तो ऐसा हुआ होगा कि उन्होंने बैंक एप्लीकेशन दी, मेरे जैसे एक बंदे ने फॉरेन एफसीए को कांटेक्ट किया और सस्पिशियस एक्टिविटी रिपोर्ट जमा कराई, वहां से एक रिस्पांस आया होगा कि हमें पता है, प्लीज लेट द अकाउंट ऑपरेट, एंड दैट इज वेयर वी आर कमिंग टू। द प्रॉब्लम इज कि अभी ये जो इतने सारे बेनामी अकाउंट हैं कि जी चौकीदार के नाम पे अकाउंट है और उसके नाम पे अकाउंट है, उसके नाम पे अकाउंट है, ये तो बैंक की गिच्ची पकड़नी चाहिए, बैंक को पकड़ना चाहिए भाई कि आप ये बताएं आपने अनट्रेन्ड लोग कैसे बिठा दिए, किस तरह हो सकता है कि कंप्लायंस ऑफिसर से भी गुजर गया, एमएलआरओ से भी गुजर गया। There are 3 different lines of defense at a bank. How did this man who's a chowkidar who doesn't even know how to sign hold 30 करोड़ रुपए in his account? किसी ने पूछा था कि इसकी तनख्वाह 170 रुपए, तो ये 30 करोड़ उसके अकाउंट में आए कैसे? So ये definitely bank is involved. Now bank is involved because they want to make money, either they're scared or whatever they're doing. But these are the things that they are keeping in mind. Now एक चीज मैं आपको बिफोर आई मूव, ये सारी मैंने लेटेस्ट डेवलपमेंट्स हैं, पॉलिसी कंट्रोल प्रोसीजर्स हैं, ये आप लोगों को मैं आई डोंट वांट टू गो थ्रू, मैं जल्दी जल्दी आपको आगे बढ़ा देता हूँ। एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इसमें इज व्हाट दे वांट अस टू डू इज अप्लाई अ रिस्क बेस्ड अप्रोच। ठीक है, you need to conduct your due diligence on your clients based on who you are, what you do. Now, every person, every bank or every institution is different. Say, for instance, मैं Shell में काम करता था, वो oil traders और brokers थे। अब oil traders और brokers के client क्या वैसे ही होंगे जैसे कि एक इस्लामिक अरब बैंक के होंगे? नहीं होंगे, दे कंप्लीटली डिफरेंट टू एंटिटीज। एक पाकिस्तानी स्विस बैंक हबीब बैंक एजी ज़ुरिक के क्लाइंट वैसे ही होंगे जैसे एक बार्कलेज वेल्थ एंड इन्वेस्टमेंट के क्लाइंट होंगे? नहीं होंगे, दे कंप्लीटली डिफरेंट पीपल। उनका आना जाना उठना बैठना वो एक पूरा कल्चर डिफरेंट है दोनों का। तो आप ये नहीं कर सकते कि जो आपने हबीब बैंक एजी ज़ुरिक में गेम चलाई है वही आप जाके बार्कलेज में चला दें, जो सिचुएशन यूबीएल में है वही आप कॉपी पेस्ट कर दें एमसीबी पे, वही एमसीबी वाले जो है वो उठा के जो है वो अपने पाकिस्तानी किसी और बैंक में। हर आदमी को अपना आप खुद असेस करना है, खुद रिस्क बेस्ड अप्रोच लेनी है। रिस्क बेस्ड अप्रोच का मतलब ये है कि आपको खुद अपने रिस्क आइडेंटिफाई करने और खुद उनको काउंटर करना है। ये सिचुएशन हर चीज में अप्लाई होती है, चाहे वो आप ब्राइबरी करप्शन को काउंटर कर रहे हो, चाहे वो फ्रॉड को कर रहे हो, चाहे किसी को भी चीज को भी कर रहे हो। आपको खुद देखना है कि मेरे एम्प्लॉइज कैसे हैं, मेरा क्लाइंट किस नौइयत का है, वो कहाँ पे ज्यादा डीलिंग करता है। जैसे लंदन में हम देखते थे कि अगर कोई अरब बैंक है तो हमें पता होता था कि पैसा कहाँ से आ रहा है, या वो दुबई से होके आएगा, या वो कतर से होके आएगा, या वो दोहा से। तो वी न्यू कि इनका बैकग्राउंड क्या है, उनके लिए उनके हिसाब से रिस्क असेसमेंट बनाई जाती थी, उनके हिसाब से फॉर्म्स बनाए जाते थे। और ये आपको अब रेगुलेटर को प्रूव करना होगा ऑल बाय लॉ। अब आपको इंफॉर्मेशन चाहिए सोर्स ऑफ फंड्स की, सोर्स ऑफ वेल्थ की, और सोर्स ऑफ इनकम की, और इंटेंडेड बिजनेस नेचर की। नाउ व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू एट अ बैंक इज कि जब आप मेरे ऑफिस में वॉक इन करते हैं तो मैं आपसे पूछता हूँ कि आपकी सैलरी है, आप डिविडेंड्स लेते हैं कंपनी से, आप करते क्या हैं? उसने मुझे बताया कि जी मैं एक डॉक्टर हूँ। अच्छा, आप डॉक्टर हैं, आप डॉक्टर कहाँ हैं? मैं पाकिस्तान में डॉक्टर हूँ। अच्छा ठीक है, किस चीज के डॉक्टर हैं? जी मैं प्लास्टिक सर्जन हूँ। और नाउ इस डॉक्टरी में मैं देख रहा हूँ कि इसमें टेररिज्म फाइनेंसिंग और मनी लॉन्ड्रिंग का रिस्क जनरली कम है। पाकिस्तान में रेप्यूटेड आदमी है, गूगल सर्च की पता लग गया, दिस इज अ लो रिस्क क्लाइंट। अगला क्लाइंट आया, मेरे जैसा आदमी, वो अंदर आया, उसने कहा जी आप क्या करते हैं? उन्होंने कहा जी मैं तो पेट्रोल पंप चलाता हूँ। पेट्रोल पंप क्यों मुश्किल है मेरे लिए? बिकॉज पेट्रोल पंप इज अ कैश इंटेंसिव इकोनॉमी। आप कितना पैसा लेते हैं पेट्रोल पंप पे, कितने का डालते हैं, क्या करते हैं? आपके हाथ में कैश आता है और कैश लेके आप वापस आते हैं। या आप कह रहे हैं कि जी मैं तो से फॉर इंस्टेंस कसीनो चलाता हूँ, लंदन में बहुत होता था, मैं कसीनो चलाता हूँ, कसीनो शेडी बिजनेस। नाउ ऐसा नहीं है कि अगर वो एक काम गलत करता है तो मैंने सारे उसको हाई रिस्क कर दिया। हमारे यहाँ पाकिस्तान में बैंक्स क्या कर रहे हैं, जो कि मैं और शुमाइल रोजाना जाके देखते हैं अक्सर, कि ये ब्लैंकेट अप्रोच पे काम करते हैं। एनीवन हुज नेटवर्थ इज से 10 करोड़ एंड अबव इज हाई रिस्क। अरे ये क्या बात हुई भाई? अमीर आदमी है तो मतलब वो धोखेबाज होगा, मतलब वो जरूरी है फ्रॉड ही होगा? दैट्स नॉट राइट, दैट्स नॉट द वे टू। हाँ, अगर उसने कोई ऐसा काम करके पैसा बनाया है जो कि जिसके अंदर मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिज्म फाइनेंसिंग का रिस्क है, फॉर इंस्टेंस ट्रांसपोर्ट करता है, हाँ, अब वो अपनी 1000 चीजों के साथ 2 ड्रग्स के ट्रक भी चला रहा है, यू डोंट नो, यू कैन ओनली डू सो मच, सो यू हैव टू कीप दैट मॉनिटरिंग ऑन। अब ये जो रिस्क असेसमेंट वो आपको करने को कह रहे हैं,
which is the latest development in Pakistan, that the institutions or regulatory entities must ensure an entity level internal risk assessment report. ये अब आपसे कहते हैं कि आपका हर आदमी, ये जब भी आपके यहाँ वॉक इन करेगा, आपको उसकी रिस्क असेसमेंट करनी है, और सिर्फ उस वक्त नहीं करनी है जब उसने ज्वाइन किया है, आपको हर साल उसकी रिस्क असेसमेंट करनी है, यानी पीरियोडिक रिव्यूज करने हैं, और उसको हर साल रिव्यू करने के बाद आपको उसकी हर ट्रांजैक्शन को रिव्यू करना है। अब वो ट्रांजैक्शन रिव्यूज आ रहे मैनुअली नहीं होती, इट्स एन ऑटोमेटिक वे ऑफ डूइंग ट्रांजैक्शन मॉनिटरिंग। आपको उसको स्क्रीन करना है। अब एक से फॉर इंस्टेंस मैं आपके पास अकाउंट खोला, कल जो है मैं वांटेड हो गया, कल मैंने जनाब, मैं आज नहीं था, कल मैं ब्लैक लिस्ट पे डाल दिया गया, अब मैं वांटेड हूं, और मेरे पास आपका अकाउंट खुला हुआ है अभी बैंक में या किसी बैंक में, तो बैंक को कैसे पता लगता है? So there we are now working very closely. शुमाइल, हम लोग भी इस पे बहुत सीरियसली काम कर रहे हैं to how to connect it with the database systems, and State Bank of Pakistan is working really hard to basically create one database where you can do one kind of due diligence, and if any of the Pakistanis who has a Shanakhti card is added onto a sanction list, they get a report early in the morning, all the banks. And they check in, and then you see if this person is your client, and there's an automatic system to do that around the world. So it's called daily monitoring, daily screening. इसी तरह रात को daily monitoring transactions की होती है। मसलन अगर आप बार कोई आदमी जो है वो 9,000 जाके डिफरेंट ब्रांचेस में जा रहा है और एक ही अकाउंट में जमा करा रहा है, इट्स ड्रिप फीडिंग, राइट? सो आप कहेंगे यार ये क्यों हो रहा है, ये 10,000 इस वजह से नहीं कर रहा क्योंकि फ्लैग हो जाएगा, तो इसको ये पता है कि 10,000 में फ्लैग होता है, तो ये 9,999 जमा कराता है। सो ये छोटी चीजें जो है ये आप मैन्युअली कर नहीं सकते फॉर अ बैंक लाइक एमसीबी और यूबीएल और ऑल दीज बैंक्स। दे हैव टू हैव दीज इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स व्हिच आर अवेलेबल अराउंड द वर्ल्ड। अभी तक वो एग्जिस्ट पाकिस्तान में उस तरह नहीं कर रहे थे बिकॉज हमें जरूरत ही नहीं थी, हम इन चीजों की फिक्र ही नहीं कर रहे थे, हम तो बस अल्लाह वेली काम चला रहे थे। बट नाउ इट इज कम टू अ पॉइंट वेयर FATF हैज टेकन इट रियली सीरियसली। मैं आपको एक आखिरी पॉइंट बताता हूं, देन आई विल मूव अहेड। मैं जब पाकिस्तान पहुंचा तो मुझे पता लगा कि जनाब गाड़ी की जो वैल्यू जो है वो होगी है 50 लाख की गाड़ी होगी है, 45 लाख। मेरे को ओके 45 लाख की गाड़ी। फिर मैं आके जब 3 तलवार के सिग्नल पे खड़ा हुआ तो मैंने इर्द गिर्द देखा, तो मेरे इर्द गिर्द कोई 20-25 करोड़ रुपए की गाड़ियां खड़ी हुई, जिसमें बच्चे भी गाड़ी चला रहे थे, आंटियां भी चला रही थी, ड्राइवर भी चला रहे थे, सब देख रहे थे। मैं सोचा था कि अगर मैं FATF का एक आदमी हूं और मैं कराची एयरपोर्ट पे उतरा हूं और मुझे पता हो कि पाकिस्तान की बेसिक इनकम या नेशनल इनकम क्या है, लेस देन 20,000 22,000, उसमें अगर कोई आदमी 22,000 अगर किसी तनख्वाह और ये बेसिक इनकम है आपकी पाकिस्तान में, और एक आदमी है जिसके पास 4 गाड़ियां खड़ी हुई हैं, तो और या 45 लाख की गाड़ी, तो उसके लिए फरारी होनी चाहिए नहीं होना चाहिए। सिविक तो एक आदमी जिस मुल्क में 25,000 बेसिक तनख्वाह हो, सारी दुनिया जो है सब मिला के हमके पैसे मिलाए तो सबको डिवाइड किया जाए तो 20,000 रुपए बनते पर पर्सन, राइट, या 22,000, और वो चला रहे 45 लाख की गाड़ी, राइट। FATF बुल के देखते हैं कि यार ये गाड़ी चला रहा है और उसको गाड़ी में भी ऐसे चला रहा है, वो ड्राइवर चला रहा है और ये नहीं चला रहा है। Corolla for him is nothing, and Honda City is nothing, और Fortuner वो खरीद रहा है 95 लाख रुपीस की, he's paying 200% extra tax और 150% जो भी टैक्स है वो ला के बाहर से गाड़ियां लोग चला रहे हैं। What is going on? Because जब आप गाड़ी लेने जाते हैं 45 लाख की, आप अपने बेटे को वहां भेजते हैं, तो वो गाड़ी लेने जाता है, वो डीलर आपको कहता है कि हाँ सर उठा ले गाड़ी, ले जाए, कैश ट्रांसफर करें, गाड़ी ले जाए। नाउ द इशू, अब हम उस पॉइंट पे आने वाले हैं कि जहां पे जब आप घर खरीदने जाएंगे, जहां पर आप गाड़ी खरीदने जाएंगे, ये सब चीजों से आपको बाकायदा पूछा जाएगा कि भैया आप अपने बेटे को 45 लाख रुपए की गाड़ी तो ला रहे हैं, जरा आप मुझे बताएं कि आपने ये पैसा कमाया कहां से। एंड दिस इज वेयर वी आर गेटिंग टू। बहुत सारी चीजों का इफेक्ट होगा। आई एम जस्ट टेलिंग यू कि अभी जो ऑब्वियस चीज है, हाई मेंटेनेंस हाई वैल्यू गुड्स, गोल्ड खरीद लिया आपने अपनी बेटी के लिए 25 लाख 30 लाख रुपए का, और वो रसीद के ऊपर सारे काम हो गए। यहाँ पे गोल्ड मार्केट में मैं देखता हूँ वो चिट के ऊपर सारे काम हो रहे हैं। दैट इज एवरीथिंग। पुराने जमाने में इट्स परफेक्ट। आज मैं उसकी वैल्यू एज अ पाकिस्तानी समझता हूँ कि जबान पे बात हो रही है, आप नेमन कम्युनिटी यहाँ पे जबान पे सारी बात हो रही है, सब कुछ हो रहा है, बट द रिस्क ऑफ टेररिज्म फाइनेंसिंग एंड मनी लॉन्ड्रिंग इज ग्रेट व्हेन इट कम्स टू सिचुएशन लाइक दिस। उन्होंने कहा है, अब ये उनकी नई रेगुलेशन ये है कि फॉर इंश्योरिंग वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स इंफॉर्मेशन ऑब्टेन्ड फ्रॉम कस्टमर ड्यू डिलिजेंस पर्पसेस, SBP entities will refer the source from which the document, और अब आपको ये भी पता करना है कि ये डॉक्यूमेंट रियल है या नहीं है और कितना पुराना है और कहां से आया है। से फॉर इंस्टेंस जब हम KYC कर रहे होते हैं किसी की, विच इज नोइंग योर कस्टमर, जब कोई अंदर आता है और हम उसके बारे में पता कर रहे होते हैं, तो अब हम पहले सिर्फ ये पता करते थे, फॉर्म फिल करने के लिए पता करते थे कि नाम क्या है, एड्रेस क्या है, लेटर पहुंच जाएगा। अब हम सिर्फ इसके लिए नहीं पता कर रहे।
अब हम जब फॉर्म फिल कराते हैं तो आप लोग अगर रिसेंटली अकाउंट खोला हो तो उसमें बहुत सारी ऐसे सवाल भी हैं कि ये बताइए कि साल में अकाउंट में कितने पैसे आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आप सैलरी कितनी है आपकी, कितने कितने महीनों में आती है, क्वार्टरली आती है या उसमें आती है, पिछले साल का आपका टर्नओवर कितना था। नाउ ये सब सवाल हम लोग क्यों पूछते हैं? क्योंकि हम एक कस्टमर की प्रोफाइल बनाना चाह रहे हैं। नाउ आपने अगर कहा है कि आपके साल के, आपकी अगर 1 लाख रुपए तनख्वाह है तो 12 लाख आपको साल के आने ही आने। अब आप आगे पीछे करके बहुत ज्यादा भी छक्का मार लेंगे, बोनसेस मार देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, 15-16 लाख रुपए आ जाएंगे। अब एकदम से अगर आपके अकाउंट में 25 लाख रुपए, 50 लाख रुपए हिट करते हैं तो आपके पास आपके बैंकर का कॉल आएगा, और अगर नहीं आता तो आना चाहिए। वो आपसे पूछेगा सर कि क्या, एंड देयर हैज टू बी अ वेरी नाइस एक्सप्लेनेशन टू इट। मगर इफ देयर इज नॉट एन एक्सप्लेनेशन एंड इट इज नॉट अ वैलिड एक्सप्लेनेशन एंड इट इज नॉट मेड अ plausible sense to what you're saying, the banker should get alert. So what we are trying to do is कि जब वो transaction suspicious होती है and it is not in line with who you are and what you do, say for instance आप घर बनाते हैं, एकदम से आपके पास कपड़ा बनाने वाले के पैसे आना शुरू हो गए, तो हो सकता है कोई बहुत सिंपल एक्सप्लेनेशन हो, मगर बैंकर विल स्टिल हैव टू पिक अप द फोन एंड फाइंड आउट एंड डॉक्यूमेंट इट and find a relevant document to confirm that the activity in the account has changed. How many times have you seen that happening in Pakistan? I can guarantee you, never. And in 5 years time, it is all happening. 5 साल तो बहुत दूर की बात बता रहा हूँ, अगर आपका यहाँ पे स्टैंडर्ड चार्टर्ड में या इन बैंकों में होगा तो आई एम श्योर दे आर ऑलरेडी एक्सपीरियंसिंग इट। नाउ नो योर क्लाइंट से होता क्या है? सबसे पहला इश्यू जो पाकिस्तान में है, पॉलिटिकली एक्सपोज्ड पीपल somehow, और ये मैं नहीं कह रहा हूं, मैं तो आपको पता गैर सियासी आदमी 3 दफा कह चुका हूं, मैं ये कह रहा हूं कि somehow जितने भी बैंकर्स और कंप्लायंस ऑफिसर्स से मैं पिछले 3 महीने में मिला हूं, मैंने काफी बड़ा सर्कल हो गया माशाल्लाह, देयर लॉट्स ऑफ MLROs, मनी लॉन्ड्रिंग रिपोर्टिंग ऑफिसर्स जिनसे मैं मिलता हूं, लंच करता हूं, खाना खाता हूं उनके साथ। उन सब का कहना यही है कि somehow एवरी गलत काम जो भी बड़ा नोटेबल है, एक तो वो छोटा चोर होता है ना, वो बेचारा इधर चर्च बेच दी, उधर से उसने 2 टीवी खरीद बेच के, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट देम, आई एम टॉकिंग अबाउट द बिग फिशेस। वो somehow जो मीडियम साइज फिशेस हैं वो somehow रिलेटेड है बिग फिशेस से, और वो सब बिग फिशेस जो है वो उम्मूमन अनफॉर्चुनेटली आर रिलेटेड टू some kind of political environment or religious environment. Now PEPs is an issue, and it has been an issue even in the UK and everywhere in the world. Politically exposed people. Now PEPs and their associates, say for instance शेख साहब मेरे पास अकाउंट खुलवाने आए यूके में, किसी अरबी शेख साहब। अब आप सोचें कि एक अरब शेख जो पिछले 25 साल से एक बैंक में काम कर रहा है, बैंक के साथ काम कर रहा है, आज उससे ये पूछा जा रहा है एकदम से कि शेख साहब आप ये बताइए कि आपका सोर्स ऑफ वेल्थ क्या है, आपका सोर्स ऑफ इनकम क्या है, और आपका सोर्स ऑफ फंड्स क्या है, और ये बेटे के अकाउंट से पैसे क्यों नहीं आ रहे हैं, और आपके अकाउंट से क्यों पैसे आ रहे हैं। This is a difficult conversation for a banker to do. Now, if a banker plays golf, say for instance with XYZ person, and then brings his money वो एक अकाउंट के पास, ये बहुत होता था यूके में हमारे साथ, कि वो बैंकर आया, उसने कहा यार ये बैंक मेरा क्लाइंट है, प्राइवेट वेल्थ में मैं काम करता था, कि हमारा क्लाइंट है और इसके यार गाड़ी अंदर खड़ी कर लो। 25 मिलियन जो है वो वहां पड़े हुए सिटी बैंक में, और मैंने उसको कन्विंस किया है कि अपने 5 मिलियन जो है वो हमारे पास ले आए। कल मैं गोल्फ खेलने गया तो वो 5 मिलियन लेके आ रहा है। अब बैंकर तो खुश है ना, उसको तो अपना अपना बोनस नजर आ रहा है। अब मैं एक 25 साल का बच्चा एक 60 साल के आदमी से कह रहा हूँ कि यार सर आप लेके तो आ रहे हैं पैसा, और बैंक को भी फायदा है, आपको भी फायदा है, सबकी पार्टी है, मगर आप इससे पूछे तो सही कि ये 5 लाख 5 मिलियन कहाँ से आए, इसका सोर्स ऑफ वेल्थ बताएं, इसका सोर्स ऑफ इनकम बताएं, इसका सोर्स ऑफ फंड्स बताएं। अब ये बैंकर के लिए बड़ी डिफिकल्ट कॉन्वर्सेशन है कि वो जाए और अपने क्लाइंट को कहे कि सर वो जो मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा था कि आप सिटी बैंक से अपना 20 मिलियन निकाल के 5 मिलियन ले आए, तो उसके लिए ना हमें एक सोर्स ऑफ वेल्थ भी चाहिए, आपका सोर्स ऑफ फंड भी आएगा। वो कहेगा भाई अस्सलाम वालेकुम, आप प्लीज यहाँ से निकलें, मेरे पास जहां पैसा पड़ा मैं वहीं रहने दूंगा, आपके पास में आ ही नहीं रहा। नाउ दिस बिकेम अ बिग प्रॉब्लम एंड आई टेल यू हाउ वी काउंटर्ड इट। एडवर्स मीडिया एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, और रेपुटेशन एक बहुत चीज है। नाउ आई एम, अब मैं आपका नेक्स्ट स्टेज पे मैं आता हूं। बिफोर दैट, क्योंकि मैंने अभी आपको बता दिया कि नई रेगुलेटरी अपडेट्स क्या हैं और क्या और किस वजह से वो सब हुई। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चंस। पूछें जी जल्दी से, क्विकली। देयर बी सर्टेन क्वेश्चंस जिनको मैं कहूंगा कि मैं आगे आपको बताता हूं, बिकॉज़ Well, Heather, अदर थिंग। जी Heather, this is Shahid Hamid. जी शायद जी, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, या जो मेरा एक्सपीरियंस है, जी हाँ आपने बात की मनी लॉन्ड्रिंग की,
आपने जी। बात की टेरर फाइनेंसिंग की, ये जी। सब लिंक्ड है। मुझे ये Absolutely. बताइएगा, विद ऑल द रेगुलेशंस देयर, हाँ, सब कुछ होने के बावजूद जो टेरर फाइनेंसिंग का उसको आप रोक नहीं सकते। जी रीजन हाँ, बीइंग देयर सम ऑफ दीज फंडिंग आर स्टेट ओन्ड। अब आप जी जी CIA, RAW, etc., and जी they हाँ। have methods, the ways to, sort of legally ये तो send that kind of money. मैं इस पे तो And आपसे बिल्कुल। मैं पूरी बात सुन लेना मेरी। जी जी और बिल्कुल। इसके अलावा आपकी कुछ ब्लैकमेलिंग इधर एंटिटीज हैं in every country, like media, for instance. Absolutely. Media है, law enforcing है, they use them as a tool because ये मैं आपको generally बता रहा हूँ, this is my general knowledge. जी But हाँ, after 45-50 years of experience, I can tell you this, that I've come across such things whereby ये जो financing होती है, इसके पीछे बड़ी legality होती है. absolutely. Suddenly you find out कि जी एक नई कोई पेट्रोलियम कंपनी का कोई ये शेयर होल्डर बन गया है, फलाना हो गया है, ढींगना हो गया है, इस किस्म की चीजें चलती हैं। और ये हमारी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, और ये जो मैंने बात की, ये दे आर वेरी गुड एट इट। और ये जो मैंने बताया कि यहाँ पे जो लोग ब्लैकमेल कर सकते हैं टू पॉलिटिशियंस और फॉर दैट मैटर जो आपकी यहाँ पे वर्किंग क्लास है, that's how things are done. Mostly जो मैंने personally जो मेरी बातें हुई हैं लोगों से at higher ups and the agencies, ये terror financing is done through that. Of course the religious element is there, but they're also sponsored, mind you. इस किस्म पहली की चीज तो मूवमेंट चलाई जाती है। ये फैटफ का भी एक मूवमेंट चलाई गई। सलाउद्दीन का मैं पढ़ा था, इतने सारे मुल्क हैं जहाँ ये सब कुछ हो रहा है। UK, where you been? I mean, अब आप अभी भी these things are Sir, happening there, mind I you. totally understand So what you're मैं saying. ये पूछना चाहता हूँ कि इनके safeguards कैसे आप निकालेंगे? Because देखिए, till सबसे रहेंगे पहली चीज तो आपकी ये चीजें under developed countries में या developing countries में ये problem रहेगा। देखिए, सबसे पहली चीज तो आप Heather, जी before you answer, I'd like to add another question related to what Air Marshal Shahid has just asked. जी हाँ, Are you all convinced that financing is done through banking channels? नो 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 I सर, don't think so. हाँ, I एक don't सेकंड think प्लीज so. सर, आई that's a टोटली good one. अंडरस्टैंड। No terrorist uses banks श्योर, for financing terrorism. जी हाँ, So it brings us back to the old, the सर old इसका question बड़ा सिंपल सा that जवाब है that सर। that FATF is more or less a political thing, more to do with politics than Absolutely, absolutely, exactly. sir. Can I दोनों को questions को मैं मिला देता हूँ। सवाल तो Yes, खैर इनके please. statements हैं और totally agree. As a Pakistani, I agree, and I've had these conversations in London or over lunches and dinners with other compliance officials, and we all think, we all agreed that this is all a facade. We all know that. But unfortunately, हम ये काम ही करते हैं। पहली चीज तो ये है कि जो आपने बात की कि ये जो जितने भी बड़े बड़े मुल्क हैं, से फॉर इंस्टेंस स्विट्जरलैंड है, लंदन है, और ये जो टैक्स हेवंस हैं जहाँ पे हमारा बहुत सारा पैसा पड़ा हुआ है, गर्नसी, जर्सी, आइल ऑफ मैन, ये जिनको टैक्स हेवंस कहा जाता है, ये सब क्रिएटेड है वेस्ट के अपने। मगर प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड कि वो बहुत सोफिस्टिकेटेड चोरी करते हैं। ठीक है, मैंने सबसे पहले इस पूरे सेशन में कहा था कि मैं आपको बता रहा हूँ कि लंदन में अगर आप 50 मिलियन की चोरी करते हैं तो आप पकड़े जाएंगे। आप 5 मिलियन की करेंगे, आप पकड़े जाएंगे। आप 500 मिलियन की करके आए, फिर देखें आपको कैसा वेलकम होता है। राइट, द थिंग इज कि हम बहुत भौंडे तरीके से हर चीज कर रहे हैं, इस वजह से हमारी और वो भौंडे तरीके से उस वक्त होता है क्योंकि हम सोफिस्टिकेटेड नहीं है। अब जिस तरह मनी लॉन्ड्रिंग हमने किया, मैं आपको छोटी सी बता दूं, ये जो अभी पैनामा पेपर्स हैं, इट इज सच अ सिली जॉब। मतलब अगर थोड़ा सा अपना ब्रेन लगाते तो मौसैक फोंसेका ने भी उनके लिए पुट्ठा काम ही किया। 2 मिनट में पता लग जाता है कि अल्टीमेट बेनिफिशियल ओनर कौन है। मुझसे पूछे तो मैं बता देता कि इसमें 3-4 और ले रहे हैं, ऐड कर लेते। मतलब इतनी ऑब्वियस भंडे हैं उसमें कि आप आराम से पकड़े जाएंगे, बिकॉज इन्होंने अन्नी पाई हुई, जैसे कहते हैं ना हमारे, अन्नी पाई हुई थी ना। वहां पर भी है, बहुत बड़े लेवल की होती है टेररिज्म। आप में सबसे ज्यादा जो टेररिज्म होती है वो गोज थ्रू चैरिटी।
ये जो चैरिटीज एस्टैब्लिश होती हैं, जो पाकिस्तान ने बहुत सीरियसली इसको इंटरनेशनल चैरिटीज को पैसा वहां से लेके आना लेके जाना इज टोटली अंडर कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट, व्हिच इज परफेक्ट। Exactly. मगर ये कि सबसे ज्यादा टेररिज्म जो है वो चैरिटीज की होती है। अब मैं आपको बता, अब ना आपने सवाल ये किया कि बैंक्स के थ्रू, आप लोग समझ, ना मैं समझता हूँ ना कोई बैंकर समझता है कि टेररिज्म फाइनेंसिंग बैंक के थ्रू होती है। मैं अब आपको बिल्कुल छोटी सी बात बताता हूँ। टेररिज्म जो अभी जो लंदन बॉम्बिंग हुई थी, उसके हिसाब से अराउंड 27,000 पाउंड उन 5 अहमकों को लगे थे कि जो उन्होंने टेररिज्म की। वो 27,000 पाउंड जो थे, उन्होंने 6 महीने में बैंक के अंदर लीगल पैसा डाला और लीगल पैसा निकाल के, कभी चेक से, कभी एटीएम से, इससे उससे निकाल के 27,000 में उन्होंने वो जो भी चीज उन्होंने बनानी थी वो बना ली। अब प्रॉब्लम ये है कि अब जो भी हमारे रेगुलेशंस अभी हम अप्लाई कर रहे हैं और जो कर रहे हैं, जब एक आदमी मनी लॉन्ड्रर है और वो क्रिमिनल है, तो वो बैंकर से हमेशा एक स्टेप आगे रहता है। या आप मुझसे बेहतर समझते हैं आप लोग कि कोई भी इलीगल एक्टिविटी होती है, चाहे वो ड्रग्स की रोकने की हो, चाहे वो, अब बैक एंड पे क्या हो रहा है और हुकूमती लेवल पे क्या हो रहा है और पूरी दुनिया के लेवल पे क्या हो रहा है और कौन कॉन्स्पिरेसी कर रहा है, ये सब चीजें मैं जानता भी हूँ, समझता भी हूँ, मगर आई एम नॉट इन द पोजीशन टू कमेंट ऑन इट। रादर आई कैन ओनली टेल यू what is to be expected. Now, if Pakistan is sensible enough, they will not stop all the money laundering that is going on in Pakistan, because money laundering is not always bad for economy. I haven't said that. But what I'm saying is, yes, terrorism financing is rubbish, but money laundering at times is very important. बहुत सारी ऐसी चीजें हैं पाकिस्तान में जो मनी लॉन्ड्रिंग के थ्रू हमें बहुत बेनिफिट हुआ है। हमारे कौमी हीरो है वो, आई वोंट टेक नेम्स, मगर जो उन सबकी सिचुएशन भी पता है। सो वी आई अंडरस्टैंड, मगर ये जो ब्लेटेंट मनी लॉन्ड्रिंग है ना, ये वाली कि आपने गरीब का पैसा दबा के और उसका घर तोड़ के और उसके ऊपर कब्जा करके पैसा बनाया, और वो दैट इज नॉट राइट। बट एक मनी लॉन्ड्रिंग जो थी उस जमाने भी होती है जब आगा सनाब्दी ने हमें बीसीसीआई खोला था। आपको क्या लगता है कि बीसीसीआई वाज द ओनली बैंक डूइंग इट? वो तो अमेरिका के काम एकदम से बंडा फटा कि अरे ये क्या हुआ, एंड दैट इज व्हेन दे रियलाइज्ड कि एक जीनियस ने उनको 15 साल से गच्चा दिया हुआ है एंड हैज टेकन ओवर ऑलमोस्ट अ बिग चंक ऑफ बैंक ऑफ अमेरिका। नाउ दिस वाज राइट, सो दिस वाज वेरी इंटेलिजेंटली डन, वेरी क्लेवर आगा साहब। नाउ किसी का हीरो जो होता है वेरी complicated. We're not talking about that. All I'm telling you now is हमारी इंशाल्लाह एक प्राइवेट गुफ्तगू करेंगे जिसके अंदर ये सारी बातें होंगी। Then money laundering is good for the country. I'll tell you. I just told you the money laundering that to do our nuclear assets, things like that. You know, money laundering बहुत सारी ऐसी है जो कि आपके थ्रू, आप दुबई को देख लें, मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे हैं, सुबह से शाम तक कर रहे हैं, और उनका अपना पैसा भी नहीं है, कोई गलत काम कर रहा है, बस उनके थ्रू गुजरता है, एंड दे मेक अ लॉट ऑफ मनी। अ लॉट ऑफ passes through Dubai. Do you know that? So everyone knows that. So मनी लॉन्ड्रिंग बहुत तरीके की होती है, बट जब वो मनी लॉन्ड्रिंग, वो पैसा वो लोग लॉन्डर कर रहे हो जो आगे जाके टेररिज्म और लोगों के दिमाग फाड़ने के लिए हो रहा है, दैट इज बैड। Yes, money laundering has to be stopped. I understand, but it has to, उसकी मकसदियत पीछे देखनी पड़ती है, और हमारी जिस तरह की इकोनॉमी और हमारी जिस तरह की सिचुएशन है उसमें टोटली मनी लॉन्ड्रिंग बंद कर देना, या ये सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस मनी लॉन्ड्रिंग को खत्म करने के लिए अप्लाई एकदम से कर देना इज नॉट द राइट वे टू गो। ये मेरा बिल्कुल छोटा सा हम्बल ओपिनियन है, और ये शायद शुमाइल आप लोगों के साथ में हम्बल ओपिनियन शेयर भी कर सकता हूँ, मगर No, I agree with you totally. I agree with you totally. 50% of our people are surviving on alternate ठीक है ना। economy. अब मैं एक बात बताऊं, मेरे यहाँ पे, मैं जिस घर में रहता हूँ यहाँ पे कमोडिटी ट्रेडिंग करते हैं वो मेरे जो भाई हैं, उनको अगर ये हर चीज की एक्सप्लेनेशन देनी पड़ जाएगी, उन्होंने 50 कहां से लिया, 50, he won't be able to do it because अभी हमारे पास वो सिस्टम नहीं है। FATF ये बात को समझता है, प्लीज ट्राई अंडरस्टैंड। जब हमारे यहाँ भी गवर्नर स्टेट बैंक या उनके रिप्रेजेंटेटिव वहां जाते होंगे तो वो उनको अपनी पाकिस्तान की सिचुएशन समझाते होंगे, बट द एंड ऑफ द डे they are also following a policy. वो भी तो एक tick box exercise, मेरे जैसे लोग वहां भी बैठे हैं। Now the next one, my question was banks were created to do money laundering, how to prevent such fraud. Now the banks were created to do money laundering during governments. Now the current government, say for instance State Bank of Pakistan में अभी जैसे न्यूट्रल लोग बैठे हुए हैं और जितनी उनके ऊपर अताब आया हुआ है, there is no way कि आप सिम्बा सांबा टाइप कोई चीज कर सके। इट्स नॉट गोना हैपन। जो हो चुका वो हो चुका, अब इनके ऊपर बहुत शिद्दत से अताब आने वाला है, जैसे जैसे इनके ऊपर जो गिरफ्त तेज हो रही है। आई होप कि होती रहे, क्योंकि अभी जो मैं चीजें देख रहा हूँ वो 100% जो अगर ये SBP ने अप्लाई करवा
दिया बैंक से और बैंक ने नहीं किया तो उनको फाइन पड़े और रेपुटेशन खराब हुई। मसला सारा ये कि हमारे यहाँ जो एक सबसे बड़ी गलत बात है वो एक कल्चर का प्रॉब्लम है। हमारे यहाँ चोर को चोर नहीं कहा जाता। जस्ट टू गिव यू एन एग्जांपल कि अगर लंदन में कोई आदमी लाइन तोड़ के अपना चेक जमा करवाने की बात करे तो लोग उसको हिकारत की निगाह से देखते हैं कि कितना जाहिल आदमी है यार, इसको लाइन लगाने की तमीज नहीं है, कितना बदतमीज है, 5 मिनट उसको सब लोग नीची निगाह से देखते हैं। हमारे यहाँ उल्टा है, कोई सिग्नल तोड़ देता है तो कहते हैं वाह क्या बात है यार, कितना कमाल आदमी है यार, देखो सिग्नल का भी ख्याल नहीं। ये जो माइंडसेट है ना कि यार, और अगर एक तोड़ेगा तो फिर 4 और भी तोड़ देंगे ना, ये माइंडसेट चेंज होने की जरूरत है। और ये कोई रेगुलेशन नहीं कर सकती, ये हमारे यहाँ खुद हमें ग्रो करना पड़ेगा। करप्शन के खिलाफ हमें खुद उठना पड़ेगा कि भाई ये गलत है और ये कल्चर चेंज होने में टाइम लगेगा। वो आप देखें बैंक में कौन बैठा हुआ है, मैं और आप बैठे हुए, पुलिस में कौन है, मैं और आप बैठे हुए, रेगुलेटर कौन है, मैं और आप, हम सब पाकिस्तानी हैं, वी आर ऑल दैट। वी हैव टू चेंज द ओवरऑल कल्चर। इसी तरह जब भी हम रिमीडिएशन प्रोजेक्ट की बात करते थे और मैं किसी बैंक में काम करने जाता था, मैं उन्मूमन उन बैंक्स में काम करने जाता था जिनकी रेपुटेशन बहुत खराब होती थी, जिनको ऑलरेडी फाइन लग चुका होता था और अब उनके तोते उड़े हुए होते थे और उनको नहीं पता होता था क्या करना है। एंड देन आई वुड गो इन विद माय टीम एंड फिक्स देयर पॉलिसीज, प्रोसीजर्स, गिव देम अ रिस्क असेसमेंट मेथोडोलॉजी टूल, ट्रेन देयर बैंकर्स एंड लीव इट देम टू अ पॉइंट। से फॉर इंस्टेंस जब मैं नेशनल बैंक ऑफ अबू धाबी में काम करता था तो मैं वहां बैंकर जो था वो क्लाइंट से फोन उठा के नहीं पूछ सकता था कि बताएं आपको ये इस बिल्डिंग के पैसे आप यहाँ ट्रांसफर करें, इसको आपको रेंट कितना मिलता है, प्लीज इसकी मुझे डिटेल वहां से ट्रांसलेट करवा के भिजवा दें कि ये बिल्डिंग आपके नाम पे, उसका रेंट हम रिसीव कर रहे हैं। वो नहीं कर सकता था। ये 1-1.5 साल बाद जब मैं वहां से निकला तो वो शेख जो थे वो खुद आते थे और खुद आके अपनी इंफॉर्मेशन हमें देते थे, बिकॉज दे न्यू दे वर फेसिंग दिस इन एवरी अदर बैंक एज वेल। So it is a culture that needs to change. जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, पहले होता था कि वो अंगूठा भी नहीं लगवाते थे, अब आपसे अंगूठा भी लगवाते हैं और आप लगा देते हैं, हर दफा लगाते हैं। बायोमेट्रिक्स करते नहीं करते, कोई नहीं पूछता कि यार आज से 5 साल पहले तो नहीं करते, क्योंकि now people just want to go in, get that thing done and go. Now if to get that done you need to go through a certain stages, most 95% of them will do it. I'm quickly moving on to the next question. I am Salahuddin, working for Morgan Stanley. Hi Salahuddin. My question is, how do you change this culture? Again, you use this right word. How do you change the culture? In Pakistan, he says you have more observations like fingerprinting होती है, ये होती है। अब मैं बताता हूँ आपको UK US में fingerprinting और ये सारी चीजें क्यों नहीं होती, मैं आपको बताता हूँ। इस वजह से नहीं होती कि जब आप US और UK में आप अपना अकाउंट खुलवाने जाते हैं तो आपका वो फर्स्ट नेम और लास्ट नेम एक सिस्टम में लिखते हैं और आपने जितने 10 साल से 15 साल से आप जिस किराए के मकान पे जहां जहां आप रहे हैं उसके आपने कितने बिल दिए हैं, कितने डिफॉल्ट हुए हैं, आप वोटर्स रोल में हैं नहीं है, ये सारी इंफॉर्मेशन उनके पास एक क्लिक पे आ जाती है। इस वजह से वो आपका बायोमेट्रिक्स नहीं करवाते, क्योंकि आप अपना बायोमेट्रिक करवा चुके हैं। आपके पास जो वहां सोशल सिक्योरिटी कार्ड है उसके अंदर आपकी दुनिया की हर इंफॉर्मेशन उसके अंदर मौजूद है। मेरे पास जो वहां ड्राइविंग लाइसेंस है, इट इज एज गुड एज माई पासपोर्ट, you know, so it has all the information. अगर वो really पता करना चाहें, please try to understand, अगर आप really पता करना, thank you so much मुजफ्फर साहब for joining us for that time, अगर वो really पता करना चाहें तो UK और US में आपकी हर चीज पता कर सकते हैं। इस तरह पता कर सकते हैं, एक तो आप कैश इंटेंसिव इकोनॉमी नहीं है, आप हर जगह अपना जाके डेबिट कार्ड यूज करते हैं, आपका 100% आपके बारे में पता किया जा सकता है कि आप कल खाना क्या खाया था आपने, आप कौन से स्टॉप पे उतरते हैं, कौन से स्टॉप पे जाते हैं। There is a massive big brother going on. They don't rate to do your biometrics. पाकिस्तान में biometrics करना इस वजह से because that's the only database that we have that is slightly functional. Okay, now let's question. There are 17 more questions. I'll quickly move on. 10 already बच चुके हैं. I'm really sorry. I know, so Bank of England question is, how come those countries are not affected by FATF? They're not affected by FATF because they have good relations with the people that they have to have good relations. आप उनके काम पे सर झुकाते रहे और आपको कुछ भी नहीं होगा। मैं देखा है UAE banks को देखा है, Qatari banks को देखा है, they are nowhere yet, they don't get fined. Quickly, a few months ago we invited Pakistan small side brokerage. Sir, I have to quickly, मैं अभी आता हूं क्वेश्चंस पे, एंड अगर ये सेशन खत्म भी हो जाता है, मुझे कोविड हुआ था तो मैं अभी क्वारंटीन में हूं, यू गाइस कैन ऑलवेज सेंड मी अ क्विक क्वेश्चन। आपको कुछ लिखने की जरूरत, हेलो भी नहीं करें, उसमें सिर्फ क्वेश्चन लिख के भेजें और मैं आपको, और आप नंबर दे देंगे तो मैं आपको वॉइस नोट रिकॉर्ड करके भेज दूंगा। सो यू नो एग्जैक्टली व्हाट माय पॉइंट ऑफ व्यू इज ऑन दैट वन। क्विकली लेट्स मूव ऑन टू नो योर कस्टमर में हम एडवर्स मीडिया और पेप्स भी देखते हैं। नाउ प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड व्हाट इज KYC फ्यूचर एंड योर इकोनॉमी। सबसे पहली चीज तो ये इसका इंपैक्ट जो है ये सब पे होगा।
आप भी फ्रस्ट्रेट होंगे, आपका बेटा भी बेटी भी फ्रस्ट्रेट होगा, आपका बहू बेटा भी सब फ्रस्ट्रेट होंगे, आपके टीचर्स, आप इर्द गिर्द आपके नेबर्स, कि यार मैं जहां जाता हूं मुझे ये भी करना पड़ता है, ये भी करना पड़ता है। ये थोड़े दिन के मसाइल होते हैं, क्योंकि पाकिस्तान एक बहुत बड़ा एलिफेंट है और बहुत सारे इसके निटी-ग्रिटीज हैं, कल्चर है। अब सोचना, मैं यहाँ पे हबीब बैंक की 17,000 ब्रांचें हैं फॉर इंस्टेंस, मैं यहाँ के कराची के, लाहौर के, इस्लामाबाद, पिंडी के तो बैंक्स में अब वो जो लाड़काना वाली ब्रांच है, जो वहां पे अकाउंट ओपनिंग ऑफिसर है, उसको भी उसी पॉइंट पे होना है जो यहाँ वाला अकाउंट ओपनिंग ऑफिसर है। इसमें बहुत टाइम लगेगा ये गेट कीपर्स को ठीक करने में, एंड विल हैपन विद टाइम, एवरीथिंग विल हैपन। इंडिया में हो सकता है तो पाकिस्तान में भी हो सकता है। इंडिया हैज डन अ वंडरफुल जॉब ऑन दिस। नाउ कम्स द अपॉर्चुनिटी। नाउ व्हेन यू लुक एट इट, दिस इज एन अपॉर्चुनिटी। गवर्नमेंट के पास एक अपॉर्चुनिटी है इन चीजों को अपने हिसाब से, जैसे हमने कोरोना का एक स्मार्ट लॉकडाउन निकाला था, we need to have a smart strategy. What that strategy is, I am not sure, because I am not an expert when it comes to that. मगर हाँ ये जरूर है कि we'll have to have this, look at it as an opportunity where we have an opportunity to actually do the due diligence and find out exactly who is laundering money, who's financing terrorism, किसके पास अलमारियों में पैसा रखा हुआ है और दरवाजों और उस पे नहीं आ रहा, ये कौन लोग हैं जिनके अकाउंट खाली है मगर और तनख्वाह सिर्फ 2 लाख रुपए है और घर जो है वो डिफेंस में 90 करोड़ रुपए का है, 9 करोड़ रुपए का, 10 करोड़ रुपए का। ये हो कहां से रहा? अभी जब तक अनफॉर्चुनेटली खैर, तो हमें ये एक अपॉर्चुनिटी है पाकिस्तान के लिए। दूसरी चीज, ये अपॉर्चुनिटी मैं इस तरह करता हूँ, जैसे हमारी जैसी कंपनीज के लिए अपॉर्चुनिटी, बैंक्स के लिए अपॉर्चुनिटीज है, यंग लड़के लड़कियों के लिए अपॉर्चुनिटीज है, जॉब्स अवेलेबल होंगी, बहुत सारे रिमीडिएशन प्रोजेक्ट्स हो रहे होंगे, बहुत सारे एनालिस्ट क्रिएट हो रहे होंगे, बहुत सारे प्रोफेशनल्स बन रहे होंगे। ये सिर्फ मनी लॉन्ड्रिंग, फाइनेंशियल क्राइम के इर्द एक बहुत बड़ा रेल्म है ऑफ पीपल हु वी कैन हायर। सो आपका जो पढ़ा लिखा तबका है उसको और नौकरियां, छोटा असर है मगर है, बट जो पढ़ा लिखा तबका है उसके अंदर घुस सकता है। आई एम रियली वर्किंग ऑन इट। वी आर डूइंग अ कैंपेन विद इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकर्स एसोसिएशन टू क्रिएट future compliance leaders. We're going to universities, identifying those kids, doing a workshop. बड़ा इंटरेस्टिंग है वो, इंशाल्लाह आपसे डिस्कस करेंगे। Now then there are problems are, yes, एकदम से इकोनॉमी में जब ये सारी चीजें आएंगी तो बैंक्स को बहुत तकलीफ होगी। जब बैंक्स को तकलीफ होती है तो क्या होता है, बैंक्स उसको तकलीफ को कम करने के लिए अपनी तकलीफ जो है वो कस्टमर्स को बढ़ा देते हैं। And that is where the government comes in to understand where the banks are finding the problems. There are certain genuine problems and there are certain Rokhda problems. Banks are making plenty of money in Pakistan, plenty of money. Now it's time for them to invest and to make sure that Pakistan is out of this grey list also. If the banks are on board, if the financial institutions are on board, if the stock market is on board, if your Gadia market and house market and Mr. Behria town, they're all on board to, yes, we need to come out of this, we can come out of this. Solutions, there are loads of solutions out there. There are electronic solutions out there. Locally there are solutions. आप transaction monitoring किस तरह कर सकते हैं आपकी, मगर it always trickles from the top. अभी जो हम FATF के ऊपर बातें कर रहे हैं क्यों? क्योंकि इमरान खान साहब पिछले 10 साल से सिर्फ करप्शन बात कर रहे थे, तो अब उनको because that is his main agenda, मुझे वोट क्यों दो क्योंकि वो चोर है। Now, please understand, now he has to deliver. Now he's trying really hard. State Bank of Pakistan में जो साहब रखे हैं, Raza Bakir, his profile is excellent. He's well respected around the world. I've heard him in London as well. He's a perfect person to do this because he's been through this a few times. But let's see. Now comes the sanctions, the real story. जो आखिरी आप सबके सवालात का जो frustration, मेरी अपनी frustration, आपकी frustration, इसका लुबाब ये है कि जनाब sanctions is a whole new different webinar, inshallah we can do it, कि जनाब ईरान पे सैंक्शन लगी हुई है, क्यूबा पे सैंक्शन लगी हुई है, सूडान पे सैंक्शन लगी हुई है, रशिया पे सैंक्शन लगी हुई है, चाइना में बहुत सारी चीजों पे सैंक्शन लगी हुई है, कुछ एंटिटीज पे लगी हुई है, कुछ इंडिविजुअल्स पे लगी हुई है, कुछ बड़े बिजनेस पे लगी हुई है। हवावी इज अ ग्रेट एग्जांपल। आपको पता है कि हवावी फोन आपके पास दुनिया का सबसे अच्छा फोन है, मेरे पास है, इट्स द बेस्ट फोन एवर, बट हवावी पे आप गूगल नहीं ऐड कर सकते, यूट्यूब नहीं देख सकते आप समझ रहे हैं? आपके साथ भी यही हो रहा है। आप पाकिस्तान है, आप एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट दे रहे हैं। मैं आपको छोटी सी एग्जांपल दे दूं कि हमारे लिए क्यों इस ग्रे लिस्ट से बाहर निकलना जरूरी है। मैं लंदन में बैठा हूं, मैं देख रहा हूं मेरे साथ एक बैंकर बैठा हुआ है, उस बैंकर के पास एक बहुत बड़ी कंपनी आई है, उसने कहा कि यार बेटा इन्वेस्टमेंट मैनेजर हो, तुम इन्वेस्ट करो बेटा। उसने जनाब लेके, उसके पास 300 मिलियन पाउंड पड़े हुए थे आज साल के एंड के, जो उसने इन्वेस्ट करने हैं। उसने जनाब अच्छे मुल्कों में कर चुका जहां पे रिस्क नहीं है, अब उसके पास आखिर के 25 मिलियन पड़े। He has to decide, उसको ऑफर आ गई यार तुम किसी थर्ड वर्ल्ड कंट्री में दे दो, हमारी
एनुअल रिपोर्ट में अच्छा लगता है कि हम सूडान में भी काम कर रहे हैं, सोमालिया में भी कर रहे हैं, पाकिस्तान में भी कर रहे हैं। अब सॉरी प्लीज अगर आप लोग माइंड नहीं करें, बट मेरा बड़ा दिल दुखता था, तो मैं बता रहा हूं आपको, जब वो वहां खड़े हुए होते थे कि अब नाउ पाकिस्तानी गवर्नमेंट इज ऑफरिंग अ ग्रेट ऑफर, labor is really cheap, Pakistan is beautiful, we have all the resources in the world, ये सारी चीजें जो इन्वेस्टमेंट मैनेजर देखता है वो सारी पाकिस्तान में मौजूद है, लेबर भी तबका है, गवर्नमेंट हेल्प करने को तैयार है, रेगुलेशंस आ रही हैं, फाइनेंस मिनिस्टर साहब रोज खड़े में, एवरीथिंग इज हैपनिंग, बट द प्रॉब्लम कम्स व्हेन द बैंकर सेज उस कंपनी को, यार हम लोग पाकिस्तान में इन्वेस्ट करेंगे, तो कंपनी कहेगी यार प्रॉब्लम ये है कि आपके पास सिर्फ हमारा अकाउंट नहीं, हमारा अकाउंट तो मॉर्गन स्टैनली में भी है और जेपी मॉर्गन में भी है और उधर भी है, यार अगर हम पाकिस्तान से काम कर रहे होंगे तो हमारी वेबसाइट पे आ जाएगा कि हम पाकिस्तान पे काम कर रहे हैं और न्यूज में आ जाएगा पाकिस्तान से आप काम कर रहे हैं, जब पाकिस्तान से आप करेंगे इलीगल काम नहीं भी कर रहे हैं, तो वो कहेंगे अच्छा पाकिस्तान क्योंकि वो हाई रिस्क कंट्री है और आप वहां से 10% से ऊपर आपका टर्नओवर आ जाता है या 5% से ऊपर आपका टर्नओवर आ जाता है पाकिस्तान से, तो हमें बहुत ज्यादा ड्यू डिलिजेंस करनी पड़ जाएगी। अब उनको अपने डायरेक्टर्स के पासपोर्ट, एड्रेस वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स भी पहुंचाने पड़ेंगे, अब उनको ये भी बताना पड़ेगा कि ये कंपनी पिछले 10 साल से करती क्या है, उनको ये भी बताना पड़ेगा कि इनिशियल शेयर होल्डर्स जो है वो 10% से ज्यादा जिसके भी हैं उनकी भी ड्यू डिलिजेंस होगी, उनका भी सोर्स ऑफ वेल्थ मंगवाया जाएगा। वो बैंकर कहते हैं बात सुनो, थैंक यू, आई डोंट वांट टू डू इट विद पाकिस्तान, I'd rather do it with Bangladesh or Nepal. You see, this is how we are losing a lot of business. ये मैं आपको बिल्कुल उर्दू में बता दिया। इसी तरह ईरान है, इसी तरह क्यूबा, इसी तरह सूडान है, इसी तरह बहुत सारे और लोग हैं। अनफॉर्चुनेटली हम लोग उस गंदी, ईरान का तो आप अकाउंट ही नहीं खोल सकते, ईरानी बेचारे रो रहे हैं। So I personally felt really bad because it's a Muslim country, whatever. I don't think कि सारे ईरानी जो है वो टेररिस्ट हैं। I don't think सारे ईरानी जो है वो अपनी गवर्नमेंट से एग्री करते हैं। बहुत सारे लोगों के डिफरेंट व्यूज हैं, वो हर आदमी एक इंडिविजुअल होता है, उसको इंडिविजुअल, और नुकसान किसको हो रहा है, ईरानी गवर्नमेंट को तो नहीं, और लोग बेचारे ख्वार हो रहे हैं। उनके पास दवाएं नहीं है, उनके पास रोटी जो है वो 2 लाख तुमान की मिल रही है, व्हाटएवर। सो प्लीज इसको, ये आई अंडरस्टैंड कि एफएटीएफ हमारे साथ ज्यादती कर रहा है, मैं बिल्कुल इससे डिसएग्री नहीं कर रहा, मगर जिन लोगों ने वहां बैठे हुए, वो जिन्होंने फैसले करने हैं, वो दे डोंट वांट टू गो इनटू द फर्स्ट कि एफएटीएफ पाकिस्तान के साथ कर रहा है क्या नहीं कर रहा। आपको अनफॉर्चुनेटली आप कितना ही शोर मचा लें, कितना ही वो कर लें, और अच्छी बात हमारे जो रजा वाकिर हो गए, they always, whenever they get the forum, they say कि this is harsh, this is strong, this is too much, no other country is doing, but it is what it is. I hope they stop doing that and somehow we get into a better relationship with them. But what they're doing with us right now is not in my control. I don't have a reason. मैं आपको इस बारे में कोई जवाब नहीं दे सकता। Sanctions real story, where will be in 10 years, the last part, उसके बाद में बाकी जितने सवाल हैं, I'm happy to sit very long. Sorry, मुझे कोविड भी हो रहा है और मैं अभी I can feel it. अच्छा, 10 साल में हमारी जो सिचुएशन होगी, हम वहां पहुंच चुके होंगे कि हम जब कोई एसेट खरीदने जा रहे होंगे, हमारे पास सोर्स ऑफ वेल्थ, सोर्स ऑफ इनकम और सोर्स ऑफ फंड स्टेटमेंट ऑलरेडी सबके पास अपने अपने घरों में लिखे हुए होंगे। हमारे बैंकर्स को हमारी इंफॉर्मेशन पता होगी, उनको हमारे एड्रेसेस पता हुआ करेंगे, उनको हम कहाँ पढ़ते थे, कहाँ से हमने डिग्री ली, एक प्लॉजिबल स्टोरी हर क्लाइंट के पास होगी। 10 साल बाद जो होगा, वो आप कोई भी सर्टेन वैल्यू से ऊपर चीज लेने जाएंगे तो उनसे आपसे फौरन पूछा जाएगा, इज इट इन लाइन विद हु यू आर, इज इट इन लाइन विद द पॉलिसी, इज इट इन लाइन विद द वर्क दैट यू डू। कोई ट्रांजैक्शन अकाउंट में आएगी, आप किसी को पैसे ट्रांसफर करेंगे तो आपको फोन आया करेगा। सो इम्पैक्ट 10 साल में बहुत ज्यादा होगा। आई डोंट नो, मैंने लंदन में देखा कि 2000 एंटिटीज 10 साल में अब उस पॉइंट पे पहुंच गई कि क्लाइंट को पहले से पता होता है कि हम जब इस बैंक में जाएंगे तो हमसे ये सवाल पूछा जाएगा, which means the culture has changed. And I am hoping that with the campaigns, with everything that Pakistan is doing, with the people who are doing business, and the way we are so resilient, Pakistanis are so resilient, वो चेंज को बहुत आराम से एक्सेप्ट कर लेते हैं और फिर उसकी कोई तोड़ भी निकाल लेते हैं और फिर उस तोड़ को बहुत दिन तक चलाना भी जानते हैं और फिट चलाते हैं। तो आई एम होपिंग दैट पाकिस्तान विल नेचुरली, ऑर्गेनिकली काउंटर एवरीथिंग दैट वी आर गोना फेस। हाउएवर, we will have to face it, and we will have to say yes to loads of things that will take a lot of time and a lot of effort and a lot of time. Thank you so much, sir. Now you guys can have all the questions that you can. Is FATF convinced that terror financing is conducted through banking channels? We've discussed that. They are not, but what they know is that banks are vulnerable. बिकॉज टेररिज्म बहुत थोड़े पैसों से भी हो सकती है। आपको एक पिस्तौल खरीदने के लिए या एक छोटा दस्ती बम खरीदने के लिए ज्यादा पैसे थोड़ी चाहिए होते हैं।
which money laundering is good for the country? I think we're mixing money laundering and funds transfer. No, we're not mixing money laundering and funds transfer. I was talking about money laundering that is beneficial, that is done by governments on government level. We can talk about it. You can share your questions. The government gives the concession that if money is spent on construction or housing will not be asked. On one side, we are trying to monitor, and on the other side, giving people to invest in source of money is not asked. Why? So what they're saying is the government is giving concessions, but there is definitely a process. Now, if you go to a bank and try to use your illegal money to do that, there's always a back way of finding out. I'm sure they looked at the risk and saw कि अच्छा ये यहाँ पे काउंटर नहीं हो रहा है, यहाँ पे काउंटर हो रहा है, यहाँ पे नहीं काउंटर, उसका कोई ना कोई आपको जस्टिफिकेशन होगा. से फॉर इंस्टेंस एक सर्टेन आमदनी वाले लोग हैं जिनको ये कंसेशन दिया जा रहा है, जिनको घर दिए जा रहे हैं, वो सारी चीजें, अगर आप उस आमदनी रेंज में हैं तो वैसे भी आपकी मनी लॉन्ड्रिंग रिस्क लो है. और अगेन, अगर आपकी आमदनी कैसे डिसाइड होगी कि लो है, वो इस तरह होगी कि आपके बैंक स्टेटमेंट्स देखे जाएंगे. फ्रॉड करने के लिए तो बहुत सारे तरीके होते हैं, उसका तो कोई तरीका नहीं है. Thank you so much, Salim Rahman Saab, for joining. We are almost done. With Razak, Can I ask a question? Sorry? Can I ask a question? Sure, sir. Okay. Again, this is Salaudeen. So my question is, अभी आपने जिक्र किया कि अब आपको रिंग आना शुरू हो जाएंगे और बैंक का रिंग करेगा और आप सब सोर्स ऑफ इनकम का पूछेगा, ये करेगा, वो करेगा. 2 questions. One is it not a conflict of interest? बैंकर का इंटरेस्ट तो ये कि मेरे पास जितने फंड्स हैं उससे हमने टारगेट पूरा करना है. So why should he go and ask the guy from where you got the money and lose that client? That's conflict of interest, in my opinion. So this system, if you're suggesting or whatever it is there, it has in itself built-in failure there. It's going to fail because the conflict of interest, number 1. Number 2, in our environment, पाकिस्तान में होता ही है कि आप जितने टैक्स लगाते हैं सिस्टम में, ठीक है, इंप्रूवमेंट भी शायद आती होगी, लेकिन at the same time that also opens another door for bribery, another tool for the bribery कि वो जी क्या करें, मसला हो गया, आप इतने पैसे दे दो, आपका मसला हल हो जाएगा. So these are 2 my questions. How to cater for these? पहली चीज तो ये जो आपने बात की, सॉरी, आपका फर्स्ट क्वेश्चन ये था कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है. मैंने खुद ये बात बोली कि बैंकर्स को बड़ी तकलीफ होती है, बट द प्रॉब्लम इज बिकॉज मैं अभी कार शोरूम वाले दोस्त हैं हमारे, मैं अपनी गाड़ी खरीद रहा था, अपने देखने गया था, तो मैं उनसे बात की, मैंने कहा यार आप लोग ये करते हैं, आपको जब गाड़ी बेच रहे होते हैं तो आपको इन्फॉर्मेशन लेते हैं ये वो. उन्होंने कहा यार अगर ये सारी इन्फॉर्मेशन हम लेने लगेंगे तो हमारे पास गाड़ी खरीदेगा कौन? हमने जो हमारी जो गाड़ी जिन्होंने गाड़ियां खरीद के जो मेरे साथ इन्वेस्टर हैं, मुझे उनका भी नहीं तफसील पता कि उनके पास पैसे कहाँ से हैं. यू अंडरस्टैंड? आप सही कह रहे हैं, ये कल्चर की बात है. बैंकर जो है वो किसी को जाके कन्विंस कर रहा है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है. बट अनफॉर्चुनेटली जो बैंकर लंदन में बैठा हुआ है, जब उसको एक मनी लॉन्ड्रर मिलता है और वो उसका पैसा लेके आने वाला होता है, तो उसको डर लग रहा होता है कि यार मैं इसका पैसा लेके आया और कल को ये पकड़ा गया तो मैं भी जाऊंगा. You know, because helping a money launderer is also a problem. That you knew you did not do your due diligence, that's a problem. Bankers have to be registered with State Bank of Pakistan to confirm that they will not be helping anyone who's in financial crime. Yet everyone bankers is doing it. A lot of times we just हम आंखें फेर लेते हैं, मगर किसको because करप्शन इतनी रैम्पेंट है कि ये करना पड़ता है. प्रॉब्लम है कि जब वहां लंदन में होता है कि वो मनी लॉन्डर को छोड़ के दूसरे क्लाइंट के पास चले जाते हो, कहते हैं यार वो तो मनी लॉन्डर है, वो तो नहीं है ना, उसके पास चले जाता. यहाँ पर आप वो नहीं है जो मनी लॉन्डर नहीं है. अगर मनी लॉन्डर नहीं है तो उसके पास पूरे डॉक्यूमेंट्स नहीं है, पूरे डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो उसके पास वो स्टोरी नहीं है, स्टोरी नहीं है तो वो कल्चर नहीं है, कल्चर नहीं है तो वो कहेगा मैं आपको क्यों बताऊं. मैं आपको ये समझा रहा हूं कि इसका टाइम लगेगा. मैं आपसे नहीं कह रहा कि ये हो सकता है या नहीं हो सकता, ये आपको करना है. इज दैट व्हाट आई एम सेइंग? अब उसकी आगे पाकिस्तान उसको किस तरह काउंटर करता है, एफएटीएफ से कैसे डील करता है. बैंकर्स बड़े बड़े जो वहां पे हमारे पाकिस्तानी बैंकर्स आर क्रेजी, दे आर सो गुड. चार्टर्ड अकाउंटेंट्स देख लें, शुमाइल हैं, ऐसे खतरनाक लोग हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता. दे आर वेरी वेरी गुड एट व्हाट दे डू. सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से ओवर इज दे माइट फाइंड अ वे आउट. हाउएवर राइट नाउ एफएटीएफ रिक्वायर्स यू टू डू दिस. अब पाकिस्तानी कल्चर के हिसाब से वो क्या है, आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं. मैं आपको एक छोटा सा बात बताऊं. मेरे एक दोस्त है, उन्होंने एक सोसाइटी में घर खरीदा था. वो जब वो घर बेचने गए तो पता लगा कि उस पूरी सोसाइटी पे बैन लगा हुआ है, आप उसमें से घर नहीं बेच सकते क्योंकि वो जो बिल्डर था उसने. तो एक्चुअली बैन गवर्नमेंट ने लगाया हुआ था. बस हो ये रहा था कि रिश्वत के पैसे बढ़ चुके थे कि जब आप वहां जाएंगे, अब वो पहले आप बैन के बगैर पैसे के 25 लाख लेता था या 20,000 या 25,000 लेता था, जो भी था. अब वो जनाब क्योंकि उस पर बैन लगा हुआ है तो ही हैज अ बेटर अपॉर्चुनिटी. काम फिर भी हो जाएगा आपका, मगर आपको रिश्वत ज्यादा देनी पड़ेगी. आप बिल्कुल सही कह रहे हैं
कि हर जो भी आप हर्डल क्रिएट करते हैं उसके वजह से एक और अपॉर्चुनिटी निकल आती है. सच अ ब्रिलियंट पॉइंट दैट इज. FATF के सामने ये पॉइंट रखना पड़ेगा, एंड आई एम श्योर रजा बागर इज इंटेलिजेंट इनफ दैट ही इज डन दैट. अब ये रजा बागर की रेपुटेशन के बारे में किसी ने कहा था कि व्हाई रजा बागर's reputation is bleak with respect to Egypt, because Egypt is just like us, and Egypt is right next to countries and places where they have to do certain things. आपको पता है इजिप्ट में भी ड्रग का कल्चर उसी तरह जैसे हमारे यहाँ हर आदमी चर्च पीता है. इसी तरह इजिप्ट में ये वाला कल्चर, उनकी जो टर्म्स हैं बहुत ज्यादा टाइट हैं विद इजराइल. They have loads of other problems. They are very uneducated, far uneducated. Now, उनके शहर में भी आपको जाहिल मिलेंगे, पढ़े लिखे भी जाहिल मिलेंगे. So Egypt is a difficult one. So I'm sure what he tried to do at Egypt, if you, I've read all about it. He did some wonderful things. अब वही वाली बात है कि अगर मैं ऐसे बैंक्स में भी गया हूँ, ज्यादा दिन नहीं रहा, मगर ऐसे बैंक्स में गया हूँ जहाँ मुझे पहले एक हफ्ते ही पता लग जाता था कि यहाँ पे कुछ नहीं होने वाला. इस वजह से कि उनकी सीनियर मैनेजमेंट ही वो नहीं है. वो बेसिकली उनके लिए टिक बॉक्स एक्सरसाइज है. वो चाहते हैं कि बस किसी तरह स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जैसे यहाँ पे वहां पे एफसी है, एफसी हमारे कंधों से हट जाए किसी तरह, एंड दैट इज ऑल देयर एम इज. मगर ये ऐसे नहीं होता. You have to work seriously, and I think Raza Bakar is that serious person who can do this. My question that the banks were created to do money laundering, how to prevent such fraud. ये हम सॉरी मैं सवाल का जवाब दे चुका हूँ. I think those are the questions. Government gives the concession. और ये सारे questions जो यहाँ लिखे हुए आए थे मैंने दे दिए. If there's any other question, we've gone way above time. This is Salman. I wanted to say thank you very much for taking all the questions from all of us and giving us some insight of how the West is trying to maneuver or manipulate these regulations to their advantage and keeping us on the run all the time. Having said that, I think the point that we also made about culture that we follow in Pakistan, हमारा culture है 2 नंबरी का. चाहे वो आबिदी साहब का बैंक हो, चाहे वो PIA की compliance हो, चाहे वो civil aviation की regulation हो, चाहे वो financial discipline हो, चाहे वो property mafia हो, चाहे वो car mafia हो, हमारा culture 2 नंबरी का है. ये कोई सिस्टम ऐसा नहीं बन सकता कि हम 2 नंबरी में बहुत ऑनेस्ट हैं. मैं हुंडी से पैसा भेजता हूँ कतर से, तो मजाल है उसमें एक पाई का इधर उधर कर देता हूं. छक्का मार दिया आपने. तो हम लोग कोई ऐसा सिस्टम नहीं बना सकते जो बेस ही 2 नंबरी पे करता हो. बना वैसे. I rest my question. There's a chaos. There's a system to the chaos. मैं अभी अपना I was trying to sell a property. I went to the DC office. गुलशन में मैं आपको बता नहीं सकता. I was in shock. I thought this was a machli market, but there was a system to whole of the chaos. Everyone knew what they were doing. They knew exactly what the laws were. They knew exactly what the culture was. किसको कहाँ जाना है, किससे पैसे पकड़ाने हैं, कहाँ करना है क्या. It was amazing. पाकिस्तान भाई मैं आपको बता रहा हूँ, we are very resilient. We are brilliant in how we are. पाकिस्तानी क्रिकेट टीम देख लेना आप कि हमें कुछ भी 15 साल से हमें नहीं खिलाते, हम जाते हैं साउथ अफ्रीका मार देते हैं 1 मिनट में. What I'm saying is that we are very talented and we will counter it. We have other support. FATF की अगर हमें प्रॉब्लम होती भी है तो we have other big. मगर again that is foreign policy questions which is. अभी तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि मैं अगर बैंक्स में जा रहा हूँ और बैंक्स मुझे कह रहे हैं अभी 1 साल के अंदर कह रहे हैं कि हैदर साहब आप आइए, अभी जिन्होंने नई रेगुलेशंस दी है मुझे समझ में नहीं आ रही मैं क्या करूँ. मैं उनके बारे में बात कर रहा हूँ कि yes, I am talking about the deep one. I'm not talking about the higher level up, which is आप लोग शायद मुझसे बेहतर समझते हो कि ईरान के साथ कैसी सिचुएशन है, उनका पैसा पाकिस्तान में कैसे आ रहा है, कैसे जा रहा है, मुझे नहीं पता. शायद बैंकर जो वहाँ मनी लॉन्ड्रिंग में तो कंसल्टेंसी कर रहा हूँ, वहाँ होता तो मैं आपको बता सकता था. मैं यहाँ पे नहीं बता सकता क्योंकि मैं बैंक में काम नहीं किया. And I don't understand the real risks associated. I'd love to know, but I don't. So I am more about making sure the prevention happens rather than investigation. I've done a lot of investigation, Malaysia, Australia, बहुत सारी जगहों पे किया है. But अभी मैं पाकिस्तान के ना पाकिस्तान की इन्वेस्टिगेशन के लिए तैयार हूँ अभी, ना मेरा उस तरह का रुझान है. I'm working towards preventative side. I'm really sorry, I'll have to go because मुझे कोविड है और मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ और मुझे वापस अपने कमरे में शिफ्ट होना है क्योंकि मेरी फैमिली आ गई है. And they're standing outside so that I can move so that they can disinfect the whole area. Because मेरे कमरे में कोई डेस्क नहीं था, मैं बेड. चलो, God bless you. God bless you. Get well soon. And thank you. A lot of good wishes from all of us today. Good night. Lovely speaking to you guys. And please, मेरा email address आप लोगों के पास है. मैं आपको बता रहा हूँ मैं कमरे में बैठा हूँ. Please send me an email. If with that you want to speak on the phone, send me a WhatsApp. I am more than happy to talk. मैं कमरे में बैठा हूँ, बोर हो रहा हूँ. Thank you so much. God bless you. Very much. Thank you, Ji. Thank you, everyone. Thank you. Thank you, Shmail and Heather. Thank you, sir. Thank you very much. God bless you. Zabardast.